Good afternoon, friends. Welcome to this crash course of ISCA. How many of you are coming to this BCS hall for the first time? If you have seen the BCS vision when you have entered on the right hand side, the third para states, BCS shall provide to students on environmental conducive to the pursuit of knowledge and encourage them to achieve their potential to become a complete CA. BCA is always very supportive of the students community at large. I don't know how many of you are aware that you can become a student member by paying rupees 500 for 1 year, 800 for 2 years and 1000 rupees for 3 years, which enables you to a web TV, to a e-journal, student study circle and a students forum. A students forum is of the students, by the students and for the students. It helps you to upgrade your professional skills, your technical skills and your soft skills. We have an annual day every year in the month of May, Students Annual Day, where more than 500 students converge and attend, and they compete for elocution, for writings, for quiz, for debate and lot of performance. A CA is always a student. In fact, 31 years after qualifying, I am still a student. Tell me why? Because I have to still attend CP courses by the institute and complete the number of hours every year actually, When I discussed this subject with my dear friend some time ago, Mr. Khuna, and when we approached Karthik for this crash course, I was knowing only one thing, that this is paper 6 in group 2 final. It's called Information Systems Control and Audit, ISCA, and many students are not able to pass this exam and not becoming CAs actually, I did some research on the net and I found that information system auditing is a function that has been developed to assess whether computer systems safeguard assets, maintain data integrity and allow the goals of an organization to be achieved effectively and efficiently. This is from the course in Canada, which is for the CAs, for the engineers and for the MBAs. They have a subject there which is also called ISCA. I am very happy that within a week we could arrange this timely, and I hope that you would benefit from a very young speaker, Karthik, and would be able to not only clear this subject but score good marks to enable you to clear the group 2 also. In fact, our President Chetan Shah's slogan for the year 16-17 is also today's vision, tomorrow's reality. So we are looking upon all of you to become members of the profession and in turn members of the BCS. With these words, I will request my friend Raj to introduce the speaker of the evening. Thank you. Good afternoon. So on a Sunday afternoon where the exams are on your head, you have been called to attend the ISCA session, but it is a crash course. I hope that the speaker for the day, he has a record of 100% passing results. So I think all of you sitting in the audience will pass in this subject, I think with flying colors. Yeah, you will be happy to hear it. I cleared my CA final in this attempt, May 2016, and I received 40 marks in ISCA, which was an achievement for myself. I consider it a big achievement for myself, getting 40 marks. And here is a speaker who has got double the marks in ISCA.
+1. So I hope that all of us, all of you sitting in the audience will be able to score an exemption at least. That is a minimum I consider with Karthik here. So I have the pleasure to introduce here Karthik Iyer, who is a chartered accountant. He is an expert in this ISCA. He also teaches law as well as audit. His motto is very interesting, that he considers his motto as innovation and fun in learning. So you could, in the next 6 hours, you could see some fun he teaches with ISCA. So that is one interesting thing to look about. And work-wise, he is a founder of the Iyer Professional Academy, and his academy has a 100% passing result in the May 2016 exam for CA final. Means all subjects, all students are passed. So I give an advance congratulations to all of you to pass out in this exam. With this, I welcome Karthik Iyer, and I also request Vice President of the Bombay Chartered Accountant Society, Narayan sir, to welcome him with a memento. So with this, I hand over to Karthik and give my best wishes for the CA final exams. May all you become chartered accountants and become members of the Bombay Chartered Accountant Society, and keep the institute's flag high. Thank you so much. Okay, thank you Narayan sir, thank you Raj for this introduction. I would like to thank Bombay Chartered Accountant Society for arranging this lecture for students. I know आप लोग के दिमाग में एक ही चलता रहेगा, कब भी चालू होगा लेक्चर एंड कब भी हम लोग इसका में पास हो जाएंगे. इसका भी टेक्निकल थ्योरी सब्जेक्ट, आई गेट टू दैट पार्ट लेटर. How to go about in ISCA, how to score well, we'll see it in these 6 hours which we have. I'll try my best to cover as much portion as possible, to give as much knowledge that I have or as much technique that I have to you, so that will help you to clear this subject, which is considered to be one of the most difficult subjects to pass in CA final exam. ठीक है, देखते हैं, don't worry. As a lecturer, don't treat me as a professor or faculty or सब, treat me as a friend. Ask me doubts as a friend, and you can ask me ground level doubts also. बहुत स्टूडेंट को दिमाग में रहता है कि मैं ये डाउट पूछूंगा तो बाजू वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में. Don't have that thing. एकदम openly you can talk to me, no problem at all. Even if it is very silly doubt, no problem at all. I completely understand. Even I have asked such doubts, and that's why I can teach now, because all my doubts are clear, even the sillier ones. So keep asking me doubts, not a problem. And let's have an open conversation. You can easily raise your hands and ask me anything, whatever you have. Okay, let's start the session. Okay. So for today's agenda, I have kept amendments first, so that will take around 3.5 hours to 4 hours. Then I'll be telling you about the exam day schedule, how to go about on the day of the exam, that is after writing costing and before going for ISCA paper, how should your preparation be for ISCA, which is very important in those 1.5 to 2 days. One more thing that I'll be covering is the revision schedule, that I think you guys have been given the revision schedule also. That will be from tomorrow onward, that is 10th October से लेकर. If you are giving both the groups, then I have kept, I think, till 24th, I think, 24th or 23rd. 25th, yeah. So 25th, how you should go about it. And if you are giving only group 2, then I have given you time up till, I think, 5th of November. Because I think after 6 you have to start studying costing. Exactly. So we'll see how to go about it. That I'll cover later on after the amendments are over. Amendments are very important. Amendments, the amendments ICI have given is very interesting. It is required. It is important. It is important. The amendments are good. It is required from CA perspective, from our future perspective. So after a long time, we are learning something actually अपने life में कुछ काम आएगा. ठीक है? So it is extremely nice. So let's start. Please come to the first page. Page number 1. Page number 1. Okay. The first amendment, you had something in detail that was cloud computing. You had something in detail called cloud computing in your previous attempt also. How many of you guys are giving this attempt? This is your first attempt. ISCA first attempt. Okay. So in the previous attempt, cloud computing also was there, but this time they extended it. So they have certain amendments in that. For that, you need to first understand what cloud computing is. Any idea what cloud computing is? What is the name?
what is cloud computing? Any idea? ये तो रट के बोल रहे हैं. What is cloud computing? It's a server, correct. Do you use YouTube? Yeah, what is YouTube? What do you do on YouTube? You go check videos, you check AIBK videos, you check East India comedy videos, you laugh and then you again switch it off, you again come back, study for some time, study for 15 minutes and again watch videos for 2 hours, again take a break, study for 15 minutes again for video for 2 hours. Now, let's start. What is YouTube? YouTube has certain computing resources in its center in America. तो इसको हम बोलेंगे there are some computing resources in USA. Computing, I'm writing CR for that. Computing resources. What will be computing resources? They will have servers, they will have computing machines, they will have network channels, जहाँ से उनका information pass होगा. There will be wires. That are computing resources. उसके साथ on a weekly basis, on YouTube people upload 2 lakh videos. How many videos? 2 lakh videos. अपने मोबाइल में 10 वीडियो अगर अपना मोबाइल एरर बताता कि नहीं, स्टोरेज डेटा एक्सीडेड, तो हाउ मच उसमें इतना कैपेसिटी कैसे आता है कि 2 लाख वीडियोस आर अपलोडेड एट द सेम टाइम, स्टिल इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज ऑन अ क्लाउड सर्वर. सो you are not concerned about the cloud server. YouTube is concerned about the cloud server because they have it in USA. Clear? So YouTube has 2 things. It has computing resources भी है उसके पास, it has database resources also. Computing resources will be your computing systems, your networks, all these things. Database resources is where your videos are saved. Database resources. Clear? What is cloud computing? One more point will be, how do you use YouTube? How do you use YouTube? Simple. This is you. You have a mobile in your hand, you will have YouTube application with you. Or you will have Google Chrome as an application, you click on that, then you go to YouTube and you watch the video. For that you need one thing extra, you need network, that is internet. Clear? अच्छा, अगर मेरे पास मोबाइल है, that is client device. If I have an application of YouTube and I have internet, can I access YouTube or no, according to you? Yeah, that is the only thing which is required. For this, we use a technical word called front-end interface. Front-end interface. So we are using some front-end interface which can be YouTube application or Google Chrome to access computing resources and database resources which is at the YouTube office in America. Clear? 2-3 videos got deleted or 2-3 videos का वायरस आ गया, which is not concerned with you. मतलब आपने वो वीडियो अपलोड नहीं किया, वो वीडियो में YouTube का अपना वायरस आ गया. Do you worry about it or does YouTube have to worry about it? Correct. So in cloud computing technology, the user does not have to worry about maintenance and management of resources. The user does not have to worry about what? Maintenance and management of resources. उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसको क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? Because this cloud by itself, YouTube by itself is what? It is highly scalable and dynamic. Highly scalable and dynamic का मतलब क्या? Highly scalable मतलब अगर 2 लाख वीडियो अपलोड हुए और 2 लाख वीडियो अपलोड हुए और 2 लाख वीडियो अपलोड हुए, YouTube में कैपेसिटी है कि ग्रो करते जाए, इसको अपन बोलते हैं स्केलेबिलिटी. डायनामिक मतलब क्या? अगर मैंने वीडियो MP4 फॉर्मेट में अपलोड किया, मैंने वीडियो एनी अदर वीडियो फॉर्मेट ऐसा अपलोडेड, तो YouTube ऐसे बताएगा नहीं कि दिस इज रॉन्ग, ऐसे बताएगा नहीं. इट हैज द कन्वर्जन कैपेसिटी ऑफ कन्वर्टिंग द वीडियोस इनटू इट्स ओन फॉर्मेट. दैट इज इट इज हाईली डायनामिक आल्सो. क्लियर? हाईली स्केलेबल एंड डायनामिक. सिंपल है. अभी तो क्या देखा अपन ने? क्लाउड कंप्यूटिंग बाय इटसेल्फ इट हैज व्हाट? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड डेटाबेस रिसोर्सेज एट इटसेल्फ. ठीक है? हाउ डज यूजर एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज? बाय यूजिंग अ फ्रंट एंड इंटरफेस. डज यूजर हैव टू वरी अबाउट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज? नॉट एट ऑल. Why user does not have to worry about maintenance and management of resources? Because cloud by itself is what? Highly scalable and dynamic. That is it. तो अगर एग्जाम में आया क्लाउड कंप्यूटिंग, what is cloud computing for 4 marks या शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आ सकता है शॉर्ट नोट्स. There you have to write these points. The cloud computing has computing resources and database resources by itself. User can access cloud computing resources by using a front-end interface like a web browser or an application. User does not have to worry about maintenance and management of resources. He does not have to worry about maintenance and management of these resources. And the cloud by itself is what? Highly scalable and dynamic. क्या बोल रहा हूँ जी? Simple. That is cloud computing. तो हर बार अभी अपन जो cloud computing देखने वाले ना, अभी आज जितना देखने वाले, because it has a big chunk of the amendments. तो
जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग अभी करेंगे ना, so keep YouTube as an example in your head, best example, because we use it on a day-to-day basis, so it is very easy for you to connect with it. तो कोई इंस्टाग्राम में रहेगा तो यूज इंस्टाग्राम एज एन एग्जाम्पल, तो इट इज मच इजियर फॉर यू टू कनेक्ट इफ यू आर यूजिंग इट ऑन अ डे-टू-डे बेसिस. Clear? Now these clouds are various types, are of various types. There has been a cloud which has been observed only within the vicinity of the organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री के अंदर ही सीमित एक क्लाउड रहता है. इसको अपन बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड. There is some information which is accessible by everyone on YouTube. If my favorite actor is Deepika Padukone. If I type on Google Deepika Padukone, उसका तो बुरा लगा. Deepika Padukone Wikipedia page, Deepika Padukone का second link, third link, Deepika Padukone Ranveer Singh, Deepika Padukone ये पूरा link आएगा. I can check any news there. Why? Because it is accessible to. इसको बोलते हैं अपन पब्लिक क्लाउड. इसको बोलते हैं पब्लिक. We'll see that in detail when we go into that. पर खाली इसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है. तीसरा एक होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड मतलब क्या? कुछ चीज होता है प्राइवेट का फीचर्स और कुछ में होता है पब्लिक का फीचर्स. We'll see what that is अभी. अच्छा, your Gmail account. Can I check your Gmail account emails? Can I check your email which is there in your Gmail account? या अटैचमेंट तुम लोगों फ्रेंड ने किया अटैचमेंट भेजा. Can I check that? No, why? ये तो गूगल से रिलेटेड Gmail गूगल. तो आपने अभी बोला कि मैं अगर Deepika Padukone का सब इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ वहां से, then why can't I access your Gmail account? It is protected. That is because Google is based on a hybrid cloud technology. Google by itself is a hybrid cloud technology. तो Google ने कहते हैं कुछ चीजें हैं उसका तो सिक्योर्ड है, and some things are public. Normal search which you do on Google, that is public, but a Gmail account is private. मतलब hybrid cloud is like this. इसका कुछ फीचर्स प्राइवेट है and कुछ फीचर्स पब्लिक. Hybrid cloud. Then is generally known as community cloud. I'll teach you community cloud when you get to community cloud. When you come there, I'll teach you that. Clear? Simple है. I'm just giving a brief. We'll see in detail. Clear है? Now, private cloud. Private cloud, always remember, it is always within the organization. Always within the organization. Now, I did my articleship in Ernst & Young, EY. I did my articleship in EY. EY has something known as knowledge portal. Are there anyone from EY here? Yeah, no one. There is something called knowledge portal. What is knowledge portal? Suppose if I search a certain case law, suppose I did section 32, your depreciation section of income tax act. I did some research on that. And I dealt with a particular case which my client had a problem with. So I did a research on that, and but still I'm unable to find कि इसका exact solution क्या है. So there was a knowledge portal team which sits in Vile. So he used to write a query saying that okay, I did this basic research but I couldn't find an answer to this. Can you please do an in-depth research of this and get back to me? So knowledge portal team will see whether they can take up the case, and then they will do a research and they will help me out with section 32. One of our friend had an issue with section 40A IAA. So he did that section of research, he couldn't find the exact answer, so he also went to the knowledge portal team and told them, see I did some basic research but I am still not able to get an answer. तो उसके ऊपर knowledge portal ने वर्क किया और उसको भी उसके सेक्शन के जो मैटर से डील कर रहा था उसको सोल्यूशन दिया. Now after few days, after say about 1 year, I had a problem with section 40A IAA. Same problem with my friend had. When I went to the knowledge portal team saying that कि देख मैंने कहा रिसर्च चलेगी आया नहीं, knowledge portal ने बोला तुम पहले knowledge portal का लिंक चेक कर, उधर हम लोगों ने ये केस ऑलरेडी सॉल्व कर दिया. So what basically they are doing is all over India जितने भी टैक्स के केसेस आते हैं ना, they are solving it and then maintaining a database. So सेक्शन 32 के ऊपर जो भी केस है, सेक्शन 32 लिखा रहेगा, उसके नीचे जो भी केस है सब लिखे रहेंगे अच्छे से. सेक्शन 40 IA के नीचे सब केसेस लिखे रहेंगे. Are you getting a point? Now, I as a user, I have to just go to the knowledge portal, check once कि मेरा जो केस है क्लाइंट का वो ये केसेस में पहले से जो सॉल्व हो चुके हैं उसमें है क्या. अगर है then I can directly use it. I don't have to approach them. ये जो पोर्टल बन गया ना अभी, इसको अपन बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड. क्या बोलते हैं अपन? प्राइवेट क्लाउड. बिकॉज इट इज व्हाट विदिन द ऑर्गेनाइजेशन. टेल मी, आई वाज फ्रॉम EY. कैन अ Deloitte person check this? No. Why? Because it is within the organization. Clear? Take a first slide. Let's see the first slide. Let's see cloud computing environment.
क्या लिखा वहां पे, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, ठीक है. नाउ लेट्स सी ओनली प्राइवेट क्लाउड पार्ट बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू दैट नाउ. लेट्स सी प्राइवेट क्लाउड पार्ट. व्हाट इज इट? Private cloud, now see how I am reading it, see how I am reading it, it will go like this. Private cloud are also called internal cloud. Private cloud are managed by organizations IT department. Private cloud कौन यूज कर रहा था? Organizing employees, मतलब क्या, it is being used by the organization. Private cloud used by the organization. Private cloud का last point will be writing it presides over organization boundary, it is within the organization boundaries. So just ask you short note on private cloud, so about 4-5 lines you can write this and then additional characteristics of point which we will do later. Simple है. You have to remember the word Amul. What Amul? You know Amul, the company. AMUL. A से आएगा are also called, M से आएगा managed by, U से आएगा used by, L से आएगा last point. एग्जाम में last point करके लिखने का नहीं, देखा लगा. Private cloud are also called internal cloud. Private cloud are managed by organizations IT department. Private cloud are used by the organization. And last point will be private cloud presides over organizations boundaries. Clear? Then we have public cloud. What is public cloud? The Google search, which I gave the example of Google search. Dekha. Public cloud. Public cloud are also called a provider cloud because they are providing. Now generally students make this mistake in the test which I take. Generally students make this mistake of उसको दिमाग में आता है कि प्राइवेट क्लाउड और इंटरनल क्लाउड, तो पब्लिक क्लाउड और एक्सटर्नल क्लाउड लिख देते हैं, वो गलत है. इट विल बी पब्लिक क्लाउड और प्रोवाइडर क्लाउड. रिमेंबर, प्रोवाइडर क्लाउड. अच्छा, पब्लिक क्लाउड इज मैनेज बाय, डू यू मैनेज पब्लिक क्लाउड? आर यू मैनेजिंग गूगल? नो, इट इज मैनेज बाय गूगल इटसेल्फ, सो दैट इज वेंडर और थर्ड पार्टी. But can the general public use it? Yes. क्या लिखा? Public cloud are used by who? General public. अच्छा, public cloud का last point है pay per use mode. Now understand this point. Pay per use mode मतलब क्या? Right now Google is not charging you for anything. It is not charging you for anything. But so that concept will come in. जैसे YouTube has started another concept called YouTube Red in US. You know what YouTube Red is? अगर हम YouTube पे जाएंगे ना तो you can see lot of videos with ads, 28-second ads, 1 minute 2 second ads, 2 minutes ad. That is also 44 minute का ad, 44 minute का ad. You cannot skip the ad also. Skip ad पहले था, अभी तो उन्होंने वो भी निकाल दिया. So what they are trying to say is, if you don't want to look at the ad, then you subscribe with us on YouTube Red. So you will get ad free content. मतलब अगर ad नहीं देखना तो पैसा भर. अच्छा, अगर मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ और अगर मेरे को एक्चुअली एड से इरिटेशन हो रहा है ना, आई डेफिनेटली पे फॉर द सर्विसेज. अच्छा, अभी ये देखा, तो दैट इज द पे पर यूज मोड. दैट इज जितना यूज करेंगे तब हमको पे करना पड़ेगा. नाउ लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड. एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड. अच्छा, एडवांटेज एक्चुअली पीछे कवर्ड रहेगा. एक काम करो, जस्ट कैंसिल आउट दैट एडवांटेजेस का पार्ट ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक क्लाउड. जस्ट कैंसिल इट ऑफ. दैट विल बी कवर्ड बिहाइंड. दैट्स व्हाई डिसएडवांटेज कैंसिल मत करना, खाली एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज कैंसिल मत करना, खाली एडवांटेजेस. सेटिंग अप अ क्लाउड इज नॉट इजी, इट इज नॉट अ जोक, बिकॉज आई एम इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये इसको संभालने का, इसको संभालने का, ये तरफ स्केलेबल डायनामिक भी होना चाहिए. इट इज नॉट इजी. So one of the disadvantages of private cloud will be that if your entire organization is on setting up private cloud, then it has to be done by the organization की IT department only. So IT department should be very very capable. अगर if they want a technical knowledge ना तो प्राइवेट क्लाउड एक बार बन जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं होगा, खराब हो जाएगा. क्लियर? क्या लिखा है डिसएडवांटेज में? डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन बाय ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? अच्छा, पब्लिक क्लाउड का प्रॉब्लम क्या बताएगा? पब्लिक क्लाउड का सिक्योरिटी नहीं है. सिक्योरिटी नहीं है. If I upload some content anywhere in the web world, और जो गूगल ने सर्च किया, गूगल कैसे भी करके वो कंटेंट दिखाएगा पब्लिक को कि देखिए ये कहीं से आया था. मतलब क्या है, सिक्योरिटी का अश्योरेंस इन पब्लिक क्लाउड नहीं है, सार्वजनिक है, तो पब्लिक में सिक्योरिटी नहीं है. देख क्या लिखा वहां पर? सिक्योरिटी अश्योरेंस इज अ डिसएडवांटेज दैट इज नॉट देयर इन पब्लिक क्लाउड. क्लियर? सो स्टे विद मी. पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, अगर तेरे शॉर्ट नोट्स आए एग्जाम में, पहले आएगा पब्लिक क्लाउड, पहले क्या आएगा? मेन पॉइंट अमूल याद रखने का. आर ऑल्सो कॉल्ड, मैनेज्ड बाय, यूज्ड बाय एंड लास्ट पॉइंट. सिंपल. प्राइवेट क्लाउड आर also called what? Internal cloud. Public cloud are also called provider cloud. Private cloud are managed by organizations, IT department. Public cloud are managed by vendor or third party. Private cloud are used by organization. Public cloud used by general public. Private cloud का last one क्या लिखिएगा अपन? Presides over organizations boundaries. Public cloud का last one क्या आएगा? Pay per use mode पर. अच्छा, प्राइवेट का डिसएडवांटेज मोड रहेगा, डिसएडवांटेज रहेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को खुद को करना पड़ेगा. एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट एवरीथिंग. पब्लिक क्लाउड का डिसएडवांटेज क्या रहेगा? सिक्योरिटी एश्योरेंस है क्या? नहीं है. सिंपल. सो आज शॉर्ट नोट यू कैन राइट दीज 4 पॉइंट्स प्लस 1 डिसएडवांटेज किसी का भी.
Easy यहाँ तक? Don't worry, yeah, we'll be after covering a certain part, we'll again come back to this part. I will again revise it. So by the end of the day ना, you'll be champion at whatever you'll be completing. ठीक है, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Let's see next part. Look at characteristics of private cloud. Please look at characteristics of private cloud. Clear. Now before getting into this now, I want to show you two videos. Okay, you will get a better grip of what cloud computing is. That will help you in writing the answer in the exam. Okay? 1 minute. It is not functioning. No. आ गया. Okay. First video which I want to show you is about the Google's data center. How they are maintaining data. This helps you in two chapters. That is chapter 8. That is emerging technologies. And then chapter 3. That is protection of information systems. ठीक है? A data center is the brains of the internet, the engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on, and we enjoy doing it. And they work very hard, so we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. We have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security, protecting the security and the privacy of our users' information. Now, this is the data center which Google has. So your Gmail account is in one of these systems. This is the data center. This is the cloud computing technology. Yeah. So when I say your database resources, computing resources, these are the database resources and the computing resources which we are talking about. Is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get
into the secure corridor, which leads to the data center. That's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like, for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power distributed across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server to they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cooled air under the floor, it then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we put it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle that can be achieved, I just laugh. What if you could analyze huge data sets in... Okay, now there is a concept known as load balancing application instances, which is a technical term, which generally students have a problem with understanding that part. I would like you to find a video on YouTube itself regarding which is explaining load balancing application instances. What is load balancing application instances? Basically, suppose if you and your friend go to ICAI to get CA modules, but your friend has one hand fractured. You have the capacity to lift, say, about 15 kilos of books you have the capacity to lift. You have lifted 10 kilos of books, that is your module is 10 kilos. आपके friend के पास भी 10 किलो रहेगा, but friend का एक हाथ टूटा हुआ है, so he cannot lift with one hand, he can lift, but the other hand का 5 किलो he cannot lift. So what you tell him is, एक काम कर, मैं उठा देता हूँ. Will you offer? करेंगे दोस्त अपना. You will offer, and you will take that. That is basically called load balancing application instances. When one system has reached its efficiency का pinnacle, efficiency के top पे, the other system says, एक काम कर, तेरे में काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, you give it to me, I will do the work. What this does is, it helps two systems to work efficiently, without getting overloaded. instantaneously. Run scenarios not hundreds, but thousands of times. Bring teams together to radically reduce time to market, all while increasing productivity. You might think you owned a supercomputer, and in today's on-demand world, it can feel like you need one, just to get the detailed results, always faster, always more accurately, that make you competitive in the marketplace. The good news? IT components you may already own, mainframes, Unix servers,
Intel servers, databases, storage systems, even desktop computers and workstations harbor enormous untapped processing and storage power. Power you can easily start pulling together and dedicating to your most pressing business problems. This is IBM Grid Computing. How does grid computing unleash the power of existing systems? The typical IT deployment. Before grid, a powerful application runs on a designated server. During peak cycles, that server can get overworked and the application As you can see, all the information is going to server A. The server A में overload हो रहा है अभी काम का, and which is not getting distributed over एक server B पे रुका बैठा हुआ है और server C पे 10% realization है खाली. तो इनमें भी तो काम जाना चाहिए because they are sitting idle. If server A's efficiency level is this much, but server B and server C are idle and server is working overload, work अच्छा होगा क्या नहीं होगा? That is the distribution of work is very important. can slow, wait, even stall. Meanwhile, a large data set, which this application is analyzing, lives in a single data store. Server capacity and access to the data store place extreme limitations on how quickly output can be returned. Cycles on other servers are sitting idle. Unused disk capacity remains unavailable. In a grid deployment, workload can be broken up and sent in manageable pieces to idle server cycles. A scheduler sets rules and priorities for routing the job. When servers and storage are enabled for grid, copies of the data can be stored in formerly unused space and made easily available. Some grids focus on data federation and availability. Others focus on computing speed. Many involve a combination of the two. Either way, results can be outputted in near real time, on demand. For users, all infrastructure complexity stays completely hidden. The feeling is simple and seamless. And this simple grid deployment can be scaled to bring in other applications with new data, both within and across organizations. Teams come together to get better answers to difficult questions. Daunting problems yield immediate results. Gains in speed and accuracy, without significant cost increases, translate to real competitive advantages in the marketplace. How can your business reap the benefits of grid computing, step by step? An IBM Grid Innovation Workshop can help focus strategies and develop designs for building and deploying a grid of any size and type. For enterprise optimization, Now then they are starting to advertise their own products. So here I will stop because here they are giving information about how grid computing works. As you saw, what is private cloud which is there within the organization's boundaries. So अभी बोल रहे अगर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा तो सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है. तो सपोज इफ आई एम मेकिंग इसके नीचे बना देता हूँ. सपोज इफ आई एम मेकिंग अ प्राइवेट क्लाउड, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी सिक्योर, ठीक है. बिकॉज इट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, डोंट यू थिंक देयर इज सेंट्रल कंट्रोल या सब कोई भी कंट्रोल कर सकता है उसको? सेंट्रल कंट्रोल होगा. सो लेट्स राइट इट सेंट्रल कंट्रोल. See, generally putting all these database resources and computing resources at one place is very difficult. So the organization level which is putting this private cloud in place, the organization has to be of a relatively smaller level. या तो the project which is taking place should be of a relatively smaller scale. So we'll say that centralized control तभी possible है जब भी organization का size क्या है, small है. देख रहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल रहेगा ना तो एक और बात समझ लेना कि ऑर्गेनाइजेशन साइज की कम है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रोकना नहीं है. मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन हैज लेस बजट, मतलब क्या, बजट इज अ कंस्ट्रेंट. आई एम मेकिंग अ रुपी साइन, बजट इज अ कंस्ट्रेंट. क्लियर? सपोज यू गो एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. सपोज व्हेन आई वाज लॉगिंग इन ईरा, दे आर ऑल माय डिटेल्स, दे आर माय नेम, फादर नेम, सरनेम, एड्रेस, everything was with them. Isn't it their responsibility to keep all these data safely? ठीक है. मतलब क्या, यूजर को डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मिलना चाहिए बॉस, प्राइवेसी मिलना चाहिए, ठीक है. लास्ट वाला पॉइंट एकदम ध्यान से सुनो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. देयर इज समथिंग नोन एज सर्विस लेवल अग्रीमेंट. क्या बोल रहा है? सर्विस लेवल अग्रीमेंट. सर्विस लेवल अग्रीमेंट इज जनरली बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर. क्या बोल रहा है? बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर. बोल रहे इन द प्राइवेट क्लाउड द सर्विस प्रोवाइडर इज यू, द ऑर्गेनाइजेशन आईटी डिपार्टमेंट. बराबर है कि नहीं? अपने देखा ना, मैनेज बाय ना. दोनों में क्या है? अपनापन है. क्या बोल रहा हूं मैं? अपनापन है. यूजर फील्स ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा, ऑर्गेनाइजेशन लगता है ये यूजर मेरा.
जो पब्लिक क्लाउड में नहीं होता, बिकॉज इट इज प्राइवेट क्लाउड एंड बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर्स नो ईच अदर, द अग्रीमेंट बिटवीन देम विल बी वीक. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल, यू गाइस मीट करने में 2 लिए गाड़ी वाली देते कि नहीं, अपन देते कि नहीं, दे देंगे. रोड पे कुछ चल रहा है, कोई जानता नहीं है, उसको गाड़ी देखे देख क्या होता है. विल इट वर्क? नो. क्यों रे? क्योंकि तेरे दोस्त को पता है जो तू कर रहा है ना अपना बना है. तो द अग्रीमेंट बिटवीन देम इट विल नॉट बी स्ट्रिंजेंट, इट विल नॉट बी स्ट्रिक्ट, इट विल बी वीक. वीक अग्रीमेंट मतलब डोंट टेक इट अदर वे. वीक अग्रीमेंट मतलब कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा कि इसने तो थोड़ा गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, चलता है, तू तो मेरा ही दोस्त है. फ्लेक्सिबल रहेगा. क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच में देयर इज वीक SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट. सिंपल है. पॉइंट क्या क्या बोल रहा हूं मैं. पहला है तेरा प्राइवेट क्लाउड विल बी सिक्योर्ड. दूसरा विल बी प्राइवेट क्लाउड में सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा. थर्ड विल बी सेंट्रलाइज कंट्रोल क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन छोटा, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रहेगा तो सेंट्रलाइज कंट्रोल कैसे करेंगे? सेंट्रलाइज कंट्रोल तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है. ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल क्यों है? बिकॉज बजट ही कम है, बजट का कंस्ट्रेंट. अच्छा, यूजर का डेटा जनरली ज्यादा सिक्योर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए. हाई डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. बट ऑर्गेनाइजेशन और यूजर के बीच अग्रीमेंट रहेगा, दैट विल बी व्हाट? वीक सर्विस लेवल अग्रीमेंट. Look, think about your points है. We'll read to the points. Even then, if you have any queries, please let me know. देख क्या लिखा. Characteristics of private cloud. Certain characteristics of private cloud are as follows. Secure. The private cloud is secure as it is deployed and managed by the organization itself, and hence there is least chance of data being leaked out of the cloud. मुश्किल है. Central control. As usual, the private cloud is managed by the organization itself. There is no need for the organization to rely on anybody and it's controlled by the organization itself. खुद का है private cloud. Next, organization it is small in size and controlled and maintained by the organization. The cloud itself is very small in size and is maintained by the organization. Next क्या लिखा? Budget is a constraint in private cloud and they also have what loose SLAs, मतलब weak SLAs या loose SLAs. Next, it provides high level of security and privacy to the user. ये यूजर को क्या मिला? डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हाई मिला. लास्ट पॉइंट इज वीक सर्विस अग्रीमेंट. सी व्हाट इज रिटन. SLAs play a very important role in any cloud service deployment model as they are defined as agreements between the user and the service provider in private cloud. In private cloud, either formal SLAs do not exist. एक agreement जो साइन होगा ही नहीं, या तो फिर जो साइन होगा वो एकदम वीक रहेगा, मतलब उसको इतना स्ट्रिक्टली कंप्लाई नहीं करेंगे. Either formal SLAs do not exist or are weak as it is between the organization and the user of the same organization. Thus, high availability and good service may or may not be available. Because अपना ही है तो टाल सकते हैं यार, ये बाद में कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज वेरी वीक. सिंपल है. वी आर लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट. वेरी क्वेरी किसी को यहाँ पर नहीं. देखिए पहला पॉइंट क्या था? डायग्राम लगा, डायग्राम देख. सिंपल है. पहला पॉइंट क्या था? सिक्योर. दूसरा पॉइंट क्या था? सेंट्रल कंट्रोल. तो तीसरा पॉइंट क्या था? स्मॉल, बिकॉज इट इज विदिन द ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ पॉइंट क्या था मेरा? बजट इज अ कंस्ट्रेंट. फिफ्थ क्या था? यूजर को क्या मिलता? हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड देयर इज व्हाट? वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट. दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? मैं क्या बोलना? पहला पॉइंट क्या था? सिक्योर. दूसरा क्या था? सेंट्रलाइज कंट्रोल. तीसरा क्या था? स्मॉल. द क्लाउड इज स्मॉल बिकॉज इट इज विदिन द ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ पॉइंट क्या था? बजट इज अ कंस्ट्रेंट. फिफ्थ क्या था? हाई डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या था? वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट. दैट्स इट. ठीक है. You just see whether you remember the point and whether you understood the concept. लॉजिक समझा कि नहीं समझा? क्लियर? ठीक है. अच्छा, अपन ने एक आंसर किया प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड का डिफरेंशिएट बिटवीन. सो आई जस्ट पुट हियर. पहला अपन ने आंसर किया था ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, अमूल वाला. दूसरा अपन ने आंसर किया अभी ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या. इसके लिए अपन ने किया डायग्राम. देयर इज सम स्पेस नीचे या ऊपर का जगह रहेगा तुम लोगों को. इफ यू वांट टू मेक दिस डायग्राम यू कैन मेक इट राइट नाउ. Now characteristics of private cloud. Just tell it me once last time, then we'll go on to the next answer. पहले क्या था उसका? Secure. दूसरा क्या था? Centralized control. तीसरा क्या था? Small in size. फोर्थ क्या था? Budget is a constraint. फिफ्थ क्या था? High security and privacy. And सिक्स्थ क्या था? Weak service level agreement. सिंपल है कि नहीं? ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाओ. नहीं लिखा है डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमाइज प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. देखते हैं इसका मतलब क्या अभी. For private cloud, I had taken the example of that EY का knowledge portal. पता है यहाँ पे केस लॉ से हो रहा है. तो EY ने बोला हम लोग मेरे को मेंटेन नहीं करने का, ये मेंटेन करने का बहुत हेडेक है. मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में विप्रो है, विप्रो. तो मैं क्या बोला, EY यहाँ पे, सपोज EY इज दिस, और बाजू वाले बिल्डिंग में ही विप्रो है.
और विप्रो और ईवाई ने डील साइन किया. क्या डील साइन किया कि ईवाई का जितना भी डेटाबेस है ना, जो ईवाई खुद मेंटेन कर रहा है, दैट ईवाई इज मेंटेनिंग, नाउ विप्रो विल मेंटेन द सेम ऑन ईवाई बिहाफ. लेकिन विप्रो ने ये प्रॉमिस किया ईवाई को कि देख, मैं सिर्फ तेरा डेटा मेंटेन करता हूं, मैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन नहीं करूंगा. क्योंकि अगर विप्रो ने सारे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन करना चालू किया तो वो पब्लिक क्लाउड बन जाएगा. बराबर है कि नहीं? तो विप्रो ने बोला कि मैं सिर्फ ईवाई का डेटा मेंटेन करूंगा. इसको अपन बोलते हैं आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड. एक होता है अगर मैंने खुद ने प्राइवेट क्लाउड मेंटेन किया तो वो है ऑन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड, और अगर मैंने एक और कंपनी को मेंटेन कर दिया तो इसको अपन बोलेंगे आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड. इजी आदत, ठीक है. बेसिकली इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल लेने का, तुम लोग के घर पे तुम लोग का बिहेवियर और तुम लोग के फ्रेंड के घर पे तुम लोग का बिहेवियर, तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड के घर पे तुम लोग का बिहेवियर का क्या, और तुम लोग के घर पे तेरा बिहेवियर क्या. देखता पहले लिखा है मैनेजमेंट, पहले लिखा है मैनेजमेंट. बोल रहे मेरे घर पे ना जूता बाहर निकालने का आता था, जूता अंदर निकालने का आता था. अंदर मतलब थोड़ा बहुत अंदर, ऐसे नहीं कि दरवाजे के पास ही है, एकदम हॉल को पार करके अब हम जूता निकालता है. मेरा दोस्त के घर पे था जूता घर के बाहर निकालने का. मैं लेकिन आदत समझ मैं क्या किया, मेरे दोस्त घर पे शेर उठा गया और मैं अंदर चल गया. तो उसकी मम्मी डैडी वहां भड़केंगे नहीं भड़केंगे, या सोचेंगे देखिए ना ये क्या कर रहा, क्या बोला था, सोचेंगे कि नहीं. कहने का मतलब क्या है, वेन इट इज माई ओन प्रेमाइसेस आई कैन वर्क एज पर माई ओन फंक्शनिंग. मतलब क्या, एवरीथिंग एवरी मैनेजमेंट इज डन बाय मी. बट अगर किसी और का प्रेमाइसेस है देन मैनेजमेंट कौन करेगा, वो दूसरा आदमी करेगा. तो उसके तौर तरीके से करना पड़ेगा. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, मैनेजमेंट, मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. आउटसोर्स में लिखा है मैनेज बाय द थर्ड पार्टी. एवरीथिंग इज सेम एज यूजुअल प्राइवेट क्लाउड एक्सेप्ट दैट हियर क्लाउड इज आउटसोर्स्ड. किसी और के पास मैनेजमेंट चला गया. क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. अभी ध्यान से सुनो. मेरे घर भूख लगता ना, मेरे को भूख लगता ना, तो मैं क्या करता बताइए. अपन पहले घर के घर मम्मी नहीं है, इफ मदर इज नॉट देयर और द पर्सन कुक्स इज नॉट देयर, सो फर्स्ट आई ट्राई की पूछने के लिए कि कुछ खाना कहीं कहाँ रखा है आपने. तो उन्हें अगर फोन अगर आने वाले बोले तो अपन क्या करते हैं, घर पे जाएंगे फ्रिज खोल के देखेंगे कुछ है क्या, फ्रिज खोल देखेंगे, उसके अंदर कुछ मिला तो मिला, नहीं तो क्या करेंगे, अपना एक डब्बा रखा सके घर पे जहाँ चिवड़ा वैसा रखा रहता चिवड़ा वैसा रखा रहता, अपन उसे उठा के कुछ भी टाइम पास खाएगा. अभी पेट आधे एक घंटे के लिए पेट भरने के लिए उसे खाएगा अपन. ऐसे अपन बिंदास किचन में जाते ये सब निकालते और खाना वाना चालू करते. बोल रहे वो दूसरे रोज मेरे भूख लगा, मैंने मेरा फ्रिज खोला कि मम्मी एक रिपोर्ट में कर रहा है आदमी. मैं तो फ्रिज में कुछ नहीं, मैंने चिवड़ा उड़ा का डब्बा खोला. बोला ये क्या है, वही मम्मी को टेंशन आएगा कि नहीं उसके, उसको खुद को टेंशन आएगा कि नहीं आदमी क्या कर रहा है. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इन माई ओन हाउस ना आई हैव ब्रॉडर एक्सेस राइट्स. मतलब क्या, मेरा जो पावर है ना मेरे घर पे वो बहुत ज्यादा, अपना घर है ना अपना, किसी और के घर पे, मतलब मेरा यार होने दो, बचपन का यार, लंगोटे यार होने दो, लेकिन फिर भी मेरे को उधर उतना राइट नहीं रहेगा जितना मेरे को मेरे खुद के घर पर रहेगा. तो क्या लिखा सेकंड पॉइंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स यूजर्स. Users have broader access rights, very important word, please underline, broader access rights than general public cloud users, and service providers are able to efficiently provide the service because of small user base and mostly efficient network. Broader access rights है मेरे पास मेरे घर पे. बाजू में क्या लिखा, these are usually strictly followed as it is a third party organization. There मेरे को third party organization के हिसाब से रहना पड़ेगा. जितना अपनापन है ना उतना तेरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट वीक रहेगा, जितना दूर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से उतना तेरा सर्विस लेवल एग्रीमेंट बढ़ते जाएगा. दैट इज मोर स्ट्रिक्ट और होना भी चाहिए. नहीं क्या लगा. और मेरे घर पे क्या होता है, मेरे घर पे मेरे को ऐसे मेरा तुम्हें CFI में होता रहेगा, दैट यूज्ड टू हैपन विद मी अ लॉट. अपना अगर पोर्शन दिन का पढ़ा नहीं ना, पढ़ के नहीं होना, अपना दिमाग बहुत गर्म हो जाता है. अरे यार तुम इतना डिसाइड करता नहीं हुआ, टेंशन ये वो बहुत टेंशन. और पहला जो टेंशन निकलता है घर वालों पे, घर वालों पे. और आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये तो सटका हुआ ही है, मतलब एग्जाम के टाइम पे तो उसका गॉन केस ही है आदमी. they understand because in your own home your network is much higher. मतलब you can interact in a very open environment. मुझे बड़ा सेफ आगे पोर्शन खत्म नहीं हुआ, मैं दोस्त के घर पे गया, वो बड़ा का चालू करी तो ये नहीं है वो नहीं है, क्या ये इतना बड़ा कर रहा हूँ ये वो, सुनेगा क्या मेरा, क्या करेगा, लात मार के निकालेगा कि नहीं निकालेगा, निकालेगा. नेटवर्क में ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्क के पॉइंट में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ओन कंपनी का नेटवर्क रहेगा ना, आई हैव टू फॉलो द नेटवर्क ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. मतलब बोलने का तरीका विल बी मोर स्मूथ बिकॉज आई नो द नेटवर्क ऑफ माय ओन ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ इट इज इन द आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड, बाहर किसी और के पास, देन देयर विल बी सम डिस्टेंस. मतलब उतना नेटवर्क में इजीली नेटवर्क कम्युनिकेट
नहीं कर सकता. देखिए क्या लिखा नेटवर्क में, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड नेटवर्क इश्यू रिजॉल्विंग आर इजियर, दे अंडरस्टैंड यू. द नेटवर्क यूजुअली हैव हाई बैंडविड्थ एंड लो लेटेंसी. आउटसाइड प्राइवेट क्लाउड में उधर लिखा है द क्लाउड इज फुली डिप्लॉयड एट द थर्ड पार्टी साइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट टू द थर्ड पार्टी बाय मींस ऑफ ईदर अ डेडिकेटेड कनेक्शन और थ्रू इंटरनेट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी के अपने अरेंजमेंट के हिसाब से चलेगा सब चीज. नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी. देखो बोल, यहाँ पे अगर ईवाई ने ना यहाँ पे विप्रो के साथ डील किया और विप्रो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ईवाई खुद का डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, खुद का क्लाउड मेंटेन कर रहा है. इफ ईवाई मेंटेनिंग इट्स ओन क्लाउड और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ, मेरा शक किसी बाहर वाले पे जाएगा या मेरे ऑर्गेनाइजेशन किसी बंदे पे जाएगा? मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब क्या, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आई विल ब्लेम द इंटरनल यूजर, आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी आउटसाइड. बट अगर विप्रो मेंटेन कर रहा है और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक आदमी का अपॉइंट किया तो विप्रो के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और अगर कुछ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ दो तरीके से पता चलेगा. मेरा शक जाएगा दो लोग पे, विप्रो के किसी बंदे पे प्लस मेरा जो बंदा जो विप्रो के साथ डील कर रहा है. मतलब क्या, अगर कुछ गड़बड़ गया ना इन ऑन प्रीमिस प्राइवेट क्लाउड, मतलब मेरे खुद के प्राइवेट क्लाउड में, आई विल ब्लेम ओनली इंटरनल यूजर्स. बट अगर विप्रो के साथ मतलब आउटसाइड पार्टी के साथ अगर मैं कर रहा हूं, आउटसोर्स रहेगा तो देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर दोनों पे ब्लेम जा सकता. क्लियर? देख क्या लिखा, डेटा सिक्योरिटी, डेटा एंड सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी में comparatively it is more resistant to attacks than any other cloud and the security attacks are possible from an internal user only. The cloud is relatively less secure and security threat is from third party and the internal employee. Easy? Next वाला लोकेशन सिंपल है. देख मैं अगर क्लाउड मेंटेन कर रहा हूं तो लोकेशन कहां रहेगा? मेरा कहां पे ऑफिस, कहां पे लोकेशन. और अगर थर्ड पार्टी अगर आउटसोर्स रहेगा तो लोकेशन कहां पे रहेगा? जहां पे वो थर्ड पार्टी है या यहां पे जो वो आउटसोर्स पार्टी है. जैसे विप्रो अगर यहां पे है तो विप्रो के ऑफिस में रहेगा मेरा क्लाउड. अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे ऑफिस में रहेगा क्लाउड. सिंपल है. लोकेशन का पॉइंट देख क्या लिखा, द डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन वेयर द क्लाउड यूजर्स आर प्रेजेंट. In case of several physical locations, the cloud is distributed over several places and is accessed using the internet. Suppose you have an office in Delhi. दिल्ली में ब्रांच है, कोलकाता में ब्रांच है, चेन्नई में ब्रांच है. चेन्नई के आदमी ने भी अगर कोई टैक्स रिलेटेड क्वेरी पूछा ना, वो भी नॉलेज पोर्टल में दिखता है. Why? Because they are connected to each other using internet. Clear? लोकेशन में आउटसोर्स में क्या लिखा, द क्लाउड इज लोकेटेड ऑफ साइट एंड व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ लोकेशन द डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस. अगर विप्रो बाजू वाले बिल्डिंग को छोड़ के गया बाजू वाले शहर में तो क्या होगा, डेटा भी जाएगा मेरा बाजू वाले शहर में. देन आई हैव टू कनेक्ट थ्रू विप्रो यूजिंग इंटरनेट. बट लेकिन डेटा किसके पास रहेगा? विप्रो के पास ही रहेगा. क्लियर? लास्ट अच्छा बोल रहे, अगर इसमें कुछ खराबी हुआ, कुछ भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हुआ और अगर मैं क्लाउड मेंटेन कर रहा हूं, कैन आई ब्लेम एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन? नो. मतलब क्या परफॉर्मेंस पूरा मेरे पे. अगर मैंने किसी और को दिया और मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ, कैन आई ब्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन? यस और नो? यस. क्लियर? देखा गया परफॉर्मेंस में. द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क एंड रिसोर्सेज एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द नेटवर्क मैनेजमेंट टीम. ऑर्गेनाइजेशन की खुद की टीम को हैंडल करना पड़ेगा. इधर लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाउड डिपेंड्स ऑन द थर्ड पार्टी दैट इज आउटस्टैंडिंग द क्लाउड. मतलब जो क्लाउड का ध्यान दे रहा है. याद करने का ये याद रख, एक कोड वर्ड है एमएसएन स्लोप करके, वेर यू सी मैनेजमेंट सर्विस एग्रीमेंट ना, उसके ऊपर एक वर्ड लिखा रहेगा एमएसएन स्लोप करके. यू रिमेंबर दैट कोड. एमएसएन स्लोप मतलब क्या है? एम मतलब क्या? मैनेजमेंट. एस से क्या आएगा? सर्विस लेवल अग्रीमेंट. एन से क्या आएगा? नेटवर्क. तेरा स्लोप का एस से क्या आएगा? सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी. एल ओ से आएगा लोकेशन. टी ई से आएगा तेरा परफॉर्मेंस. सिंपल. क्लियर? तो अपन ने कितना आंसर देगा? डिफरेंस देखा ये अमूल वाला, कैटरसिस देखा ये डायग्राम वाला, और माने अपन ने अभी ये एक और आंसर किया, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइज प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. ऑन प्रीमाइज प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड. इजी है यहां तक? तो अगले क्या देखा अपन ने? क्या देखा पहले? प्राइवेट क्लाउड क्या था, पब्लिक क्लाउड क्या देखा था? प्राइवेट क्लाउड आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल क्लाउड, पब्लिक क्लाउड आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड आर मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक क्लाउड आर मैनेज बाय थर्ड पार्टी, वेंडर और थर्ड पार्टी. पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड आर यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक क्लाउड आर यूज बाय जनरल पब्लिक. प्राइवेट क्लाउड का लास्ट पॉइंट क्या था? प्रिसाइड्स ओवर ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज. पब्लिक क्लाउड का लास्ट पॉइंट क्या था? पे पर यूज मोड. सिंपल है कि नहीं? अच्छा प्राइवेट क्लाउड का डिसएडवांटेज क्या है? एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सब कुछ इनको करना पड़ेगा.
पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी है कि नहीं है? नहीं है, मतलब सिक्योरिटी एश्योरेंस वेरी लो। क्लियर? अच्छा, तेरा प्राइवेट क्लाउड का बनाना अपने एक आंसर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स करके डायग्राम मैंने बना था, याद है कि नहीं है? क्या बना था पहले? क्या था वो? सिक्योर। बाद में क्या था? सेंट्रलाइज कंट्रोल। बाद में क्या था तेरा? स्मॉल एंटिटी। बाद में क्या था तेरा? बजट इज अ कंस्ट्रेंट। बाद में ये क्या था यहाँ पे? क्या? डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज हाई यूजर के लिए। एंड लास्ट में क्या था? वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ऑन प्रेमिस प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसाइड प्राइवेट क्लाउड, इसका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो मेन पॉइंट याद रखने का क्या है? पहले क्या था? मैनेजमेंट। बाद में एस से क्या था? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एन से क्या था? नेटवर्क। एस से क्या था? सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। बाद में एल से क्या था? लोकेशन। पी से क्या था? परफॉर्मेंस। इजी। तो प्राइवेट क्लाउड पे अगर क्वेश्चन आया ना, इट विल कम फ्रॉम दीज एरियाज ओनली, इसके बाहर से नहीं आएगा प्राइवेट क्लाउड में। दिस इज इट। तो प्राइवेट क्लाउड का तेरा स्प्रेड है 3। याद रख डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, इसमें ये आ सकता है, या तो फिर व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड करके आ सकता है जिसमें अमूल का लिखना है, या तो फिर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमिस प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसाइड प्राइवेट क्लाउड। दैट्स इट, इतना ही है। याद कुछ डाउट प्राइवेट क्लाउड में किसी को कि प्राइवेट क्लाउड ये समझा नहीं बराबर कुछ? क्लियर? पब्लिक क्लाउड देखते क्या, देख क्या लेगा। पब्लिक क्लाउड मतलब ना, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे डेटा अपलोड करते जाते हैं। अभी आई थिंक बीसीएस ने उनकी वेबसाइट पे मेरे लेक्चर के बारे में डाल दिया था। नाउ इफ यू टाइप ऑन गूगल, अभी जाके तुम टाइप करेगा ना कार्तिक अय्यर और स्पेस करके बीसीएस टाइप करेगा, मेरे लेक्चर का लिंक आ जाएगा तुम लोग वहां पे फर्स्ट सर्च में। बोले अभी लास्ट 3 दिन पहले उन्होंने डाला था और अभी ये आ भी गया ऑनलाइन। क्यों बताया गया? बिकॉज कितने भी लोग डेटा अपलोड करते जाएंगे ना, the public cloud has a capacity to incorporate all the data within itself. मतलब क्या? it is highly scalable. कुछ भी डेटा उठा, कहीं से भी लिंक करेगा तो एक सर्च दिखाएगा। कभी ऐसा हो तुमने गूगल पे कुछ सर्च किया और उसका सर्च का रिजल्ट नहीं मिला हो? नहीं। क्यों बताएगा? गूगल हैज अ कैपेसिटी टू कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल के तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो सर्च रिजल्ट दिखाएगा ही पक्का। तो यू हैव टू टाइप समथिंग लॉजिक है ना उसके लिए। ये आदमी ने तो बोला था सब दिखेगा, तो दिख रहा नहीं है। फर्स्ट वी आर लुकिंग एट कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखा मेरे साथ रहे, यहाँ पे मेरे साथ रहे, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट है हाई स्केलेबिलिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? हाई स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हाई होना चाहिए। लेट्स रीड व्हाट द पॉइंट इज। The resources in the public cloud are large in number and the service providers make sure that all requests are granted. तो कुछ भी कुछ गूगल को सबका आंसर देगा वो। Hence public clouds are considered to be scalable. They are considered to be scalable. कितना भी इंफॉर्मेशन डालो बढ़ते जाएगा। सेकेंड तेरा पॉइंट लेस सिक्योर। याद है कि आपने देखा सिक्योरिटी एश्योरेंस का प्रॉब्लम पब्लिक क्लाउड वही है, लेस सिक्योर। देखिए क्या लिखा यहाँ पे? Since it is offered by the third party and they have full control over the cloud, the public cloud is less secure आउट ऑफ ऑल अदर डिप्लॉयमेंट क्लाउड। तेरा प्राइवेट क्लाउड हो, तेरा कम्युनिटी क्लाउड हो, हाइब्रिड क्लाउड हो, सबसे लेस सिक्योर इज योर पब्लिक क्लाउड बिकॉज ये सार्वजनिक है। पब्लिक क्लाउड है सार्वजनिक। तो देखिए यहां पे ये है तेरा हाईली स्केलेबल, ये है तेरा लेस सिक्योर। हाई स्केलेबल, लेस सिक्योर। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रिंजेंट एसएलए। तेरा पब्लिक प्राइवेट क्लाउड में क्या था? वीक एसएलए। वीक क्योंकि अपना ही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा अगर एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड अगर आया मेरे पास, बोलता है वो अभी सिस्टम मेंटेन करता है, सिस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। आई रन कोचिंग क्लास, तो स्टूडेंट्स का एक डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट आया, कितना फीस भरा, स्टूडेंट को अपने क्या क्या नोट दिया, उसका सब अच्छे डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। मतलब फ्रेंड इज इनटू दिस बिजनेस ओनली। वो एप्लीकेशन डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। वो मेरे पास आया कि कार्तिक मैं ये काम करता हूँ, आई टुक स्कूल के बाद मैंने साइंस लिया और तो मेरा स्कूल का डिग्री आ रहा है तो मेरे को करना जरा ये काम। बोला अरे कर कोई बात नहीं, यू डू इट। तू बता तो एग्जैक्टली कैसे करेगा, अपन इसमें बैठते हैं प्लान वैन करके करते। मेरे फ्रेंड के साथ जो अग्रीमेंट साइन होगा उसको मैं एकदम ऐसे क्या 3-4 बार पढ़ेगा, लॉयर को अपॉइंट करेगा, ऐसा करेगा क्या मैं? क्यों? वाई? मेरा फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है, अपन क्रिकेट खेला साथ में, तो आई विल नॉट बॉदर अबाउट कि वो चीट करेगा, वो सब नहीं है, बिकॉज उतना तो ट्रस्ट फैक्टर रहेगा ही। एक आउटसाइड पार्टी आया बोला कि आई एम वांट टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर यू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, गुड, चल बता व्हाट विल यू प्रोवाइड। उसको प्रोवाइड करने का जो लिस्ट दिया ना एकदम मस्त, यू शोड मी डेमो एंड ऑल। मुझे लगा अरे जबरदस्त यार ये तो। बोल उसके साथ मैं वही फ्रेंड का ट्रीट करूंगा क्या? नहीं यार, अपने बीच में क्या एग्रीमेंट छोड़ना, क्या करने का? आई ट्रस्ट यू यार। बोलूंगा कि आई विल साइन एग्रीमेंट हो, तुम एग्रीमेंट साइन ही नहीं करूंगा, मेरे को 10 बार पढ़ूंगा देखने के लिए उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, करूंगा कि नहीं करूंगा। सेम अगर मेरा ही दोस्त है, प्राइवेट है, मेरा ही दोस्त है, तो आई वीक सर्विस एग्रीमेंट रहेगा।
लेकिन अगर बाहर का पार्टी, पब्लिक, जनरल, आम जनता में से कोई आया, देन द सर्विस लेवल एग्रीमेंट हैज टू बी स्ट्रिक्ट, इट हैज टू बी स्ट्रिंजेंट. क्लियर? देख क्या लिखा, स्ट्रिंजेंट SLA. As a service provider's business reputation and customer strength are totally dependent on cloud services, they follow the SLA strictly and violations are avoided. Stringent SLA. ये कैसे याद रखने का? मैं यहाँ पे ऐसे एक कड़क डॉट मार रहा हूँ, मतलब stringent SLA. तो अपन बोलेंगे हाई स्केलेबिलिटी, लेस सिक्योर, stringent SLA. नहीं से क्या पॉइंट क्या करा? हाईली अवेलेबल. तेरे पास इंटरनेट है, तेरे पास गूगल है, तेरे पास सब चीज है जिसे गूगल चलना चाहिए. तूने गूगल पे डाला सर्च का, कभी गूगल बताता है क्या? आज मूड नहीं है यार तेरे को बताने का, ऐसा बोलता है क्या? क्यों? बिकॉज गूगल हैज टू बी व्हाट? हाईली अवेलेबल ऑल द टाइम. मैं क्या लिखा? हाईली अवेलेबल. इट इज हाईली अवेलेबल बिकॉज एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन एक्सेस द पब्लिक क्लाउड विथ प्रॉपर परमिशन. And this is not possible in other models as geographical or other access restrictions might be there. Clear? Unless any restriction is there, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे YouTube is banned in China. I hope you know that. YouTube is banned in China. तो उधर कोई YouTube एक्सेस कर नहीं सकता बिकॉज वहां पे जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन लगाया होगा. क्लियर? अगर जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो तेरा पब्लिक क्लाउड चलेगा भी, और अगर इंटरनेट रहेगा तो हाईली अवेलेबल भी रहेगा. तो इसको अपन बोलेंगे, ए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और ऊपर में अपर एरो मार रहा हूं, मतलब क्या? हाईली अवेलेबल. क्या बोल रहा हूं मैं? हाईली अवेलेबल. नहीं से क्या? अफोर्डेबल. मतलब क्या? परवड़ता है. ये क्या लिखा? The cloud is offered to the public on a pay-as-you-go basis. Hence, the user has to pay only for what he or she is using on a per-hour basis. Per-hour basis भी चार्ज कर सकते हैं. And this does not involve any cost related to deployment. YouTube का वो YouTube Red वाला एग्जांपल, मैं जितना मेरे मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए मंथली, मैं अगर दूसरा महीना मेरे को काम करने का, मेरे को YouTube में जाने का नहीं है, तो मैं नेक्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं पे करूंगा. मतलब आई एम यूजिंग इट ऑन पे पर यूज मोड. क्लियर? देख क्या लगा? अफोर्डेबल. दैट इज योर अफोर्डेबल वाला पॉइंट. याद रख, ए से ये हाईली स्केलेबल में यहाँ पे टिक मार्क मार रहा हूं, इसका मतलब है अफोर्डेबल. इसका मतलब है अफोर्डेबल. नेक्स्ट पे आ जाओ. पब्लिक क्लाउड का गूगल कैसे चल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं. मतलब यूजर नीड नॉट वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. यूजर नीड नॉट वरी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा एक और चीज, अच्छा मेरे 5 दोस्त को मैंने बोला, अरे मेरा जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी मस्त काम करता है, तो मेरा 5 दोस्त बोला, अरे हाँ अच्छा मैं भी जीमेल आईडी बनाएगा खुद का. मेरा 5 लोगों ने जीमेल आईडी बनाया. गूगल बोला नहीं, 5 लोग का एक साथ हम जीमेल आईडी नहीं बना के देगा. ऐसा बोलता है गूगल? नहीं. मतलब गूगल का बोलता है जितने भी लोग आना नो प्रॉब्लम. मतलब क्या? देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ यूजर्स. ये क्या लिखा? 6.1 देयर इज नो नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द क्लाउड. एंड लास्ट क्या है तेरा? देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ यूजर्स. तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नो करके, और नो पे मैं मार रहा हूं स्क्वायर, बिकॉज नो से 2 पॉइंट है. No need to set up infrastructure, and last क्या है? No limit of number of users. तो तेरा याद रखने के लिए आप just remember this part. It becomes more easier. I'll tell you there's a trick. It becomes more easier. ये अपन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड. मेरे साथ बोलना हाई स्केलेबिलिटी. दूसरा क्या? लेस सिक्योर. तीसरा क्या है? स्ट्रिंजेंट SLA. माने क्या था? हाई अवेलेबिलिटी. टिकमा क्या था तेरा? अफोर्डेबल. नो से 2 पॉइंट. नो नीड टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट क्या तेरा? नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. क्या बोल रहा है यहां तक? क्लियर? ठीक है. तेरे एग्जाम में इसका अगर आया क्या? एडवांटेजेस लिख. दे आर नॉट आस्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर आस्किंग अनदर क्वेश्चन, दैट इज टेल मी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड. क्या लिखने का तुम लोग को? सिंपल है. क्या लिखने का? तुम लोग को लिखने का ये पॉइंट, ब्लैक होना, तुम लोग को लिखना है ये पॉइंट, तुम लोग को लिखना है ये पॉइंट, और तुम लोग को लिखना है ये दोनों पॉइंट. मतलब कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं? स्ट्रिंजेंट SLA लिखना पड़ेगा, अफोर्डेबल लिखना पड़ेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. तो तेरा एक ही चीज करना था, तेरा 2 आंसर हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाता एंड एडवांटेजेस भी हो जाता. नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैन आस्क. एंड दिस इज पब्लिक क्लाउड का स्प्रेड. पब्लिक क्लाउड में आएगा तो इतना ही आंसर आएगा, ये दोनों में से आएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा या तो फिर एडवांटेजेस, या तो फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड, जो मैंने पहले किया था. ये भी यहां तक मतलब वरी, यहां तक क्लियर? क्लियर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड का मेथड बोलना सिंपल है. हाई स्केलेबल, बाद में लेस सिक्योर, बाद में स्ट्रिंजेंट SLA. नेक्स्ट आएगा हाई अवेलेबिलिटी, बाद में अफोर्डेबल. लास्ट में क्या था? नो से नो नीड टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. सिंपल है कि नहीं? क्लियर. एडवांटेज अगर आया तो क्या लिखेंगे अपन? स्ट्रिंजेंट SLA. सेकंड पॉइंट क्या आएगा? अफोर्डेबल. बाद में नो नीड टू वरी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट पॉइंट क्या आएगा? नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स. क्लियर? क्लियर. अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लाउड पे आ जाए, दैट इज योर हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड सिंपल है. हाइब्रिड क्लाउड सिंपल है.
याद है हाइब्रिड क्लाउड क्या बोला था मैंने, तेरा इन्हीं कुछ पार्ट है उसमें जो सिक्योर है एंड कुछ पार्ट है जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन है. जब मैंने गूगल का देखा था दैट इज हाइब्रिड क्लाउड. तो जीमेल अकाउंट इज सिक्योर लेकिन बाकी सब सर्चेस वो पब्लिक है. ये क्या लिखा hybrid cloud? The usual method of using hybrid cloud is to have private cloud initially and then for additional resources public cloud is used. The hybrid cloud can be regarded as a private cloud extended to the public cloud and aims at utilizing the power of the public cloud by retaining the properties of the private cloud. देखो खाली एक कॉमन रूल है दोस्त, प्राइवेट क्लाउड का बेस्ट एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड? सिक्योर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है. पब्लिक क्लाउड का बेस्ट एडवांटेज क्या है? स्केलेबल है, मतलब क्या कितना भी काम बढ़े वो पब्लिक क्लाउड उसको सहन करके और काम करेगा. हाइब्रिड क्लाउड ये दोनों को मर्ज करता, मतलब वो दोनों का मिड पॉइंट है. कहने का मतलब क्या है? इट इज मोर स्केलेबल देन प्राइवेट क्लाउड एंड इट इज मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड. क्लियर? अभी देखा ध्यान से. Characteristics of hybrid cloud. The क्या लिखा है? Scalable. The hybrid cloud has a property of public cloud with the private cloud environment, and as the public cloud is scalable, the hybrid cloud with the help of its public cloud counterpart is also scalable. Because ये public cloud का प्रॉपर्टी है तो public cloud जैसा ये scalable भी है. याद रख, इधर था तेरा हाईली स्केलेबल. अभी ये तीनों पॉइंट ले लेना साथ में. देख क्या बोल रहा हूं मैं. इधर तेरा पब्लिक क्लाउड था हाईली स्केलेबल, इधर अपन सिर्फ इसको ये पॉइंट को अपन वापस रीराइट करेंगे. इधर हाईली स्केलेबल की जगह अपन बोलेंगे ये है स्केलेबल, ये है स्केलेबल. नेक्स्ट पॉइंट क्या? पार्शियली सिक्योर. क्या लिखा? द प्राइवेट क्लाउड इज कंसिडर्ड एज सिक्योर एंड पब्लिक क्लाउड एज हैज हाई रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच. द हाइब्रिड क्लाउड thus cannot be termed as secure but as partially secure. थोड़ा बहुत सिक्योर है, कुछ चीजें पब्लिक के लिए है तो सिक्योर नहीं हो सकता. ये था तेरा लेस सिक्योर. तेरा प्राइवेट क्लाउड है पार्शियली सिक्योर. प्राइवेट क्लाउड क्या है? पार्शियली सिक्योर. एक काम करेगा मैं इसके नीचे थोड़ा सा पी भी लिख देता हूं, मतलब सिक्योर पार्शियली. ठीक है. नेक्स्ट देख तेरा क्या है? अच्छा नहीं बोल, इधर भी पब्लिक क्लाउड कंपोनेंट है. पब्लिक क्लाउड है ना कुछ ना कुछ. वो पब्लिक पे भरोसा कर सकते हैं एग्रीमेंट साइन करते वक्त? नहीं. मतलब क्या इधर भी क्या रहेगा तेरा? स्ट्रिंजेंट एसएलए, क्योंकि वो अपना नहीं है. देख क्या लिखा होगा? स्ट्रिंजेंट एसएलए. ओवरऑल द एसएलएस आर मोर स्ट्रिंजेंट देन द प्राइवेट क्लाउड एंड माइट बी एज पर द पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. मतलब क्या ये पॉइंट जो है ना वो भी एग्जैक्टली आ जाता है. मतलब क्या इधर भी क्या तेरा स्ट्रिंजेंट एसएलए. तो तेरे 3 एस है. जो तेरा इधर एस का सेम है लेकिन क्या वर्डिंग अलग है. इधर था हाईली स्केलेबल, इधर है स्केलेबल. इधर था लेस सिक्योर, इधर है पार्शियली सिक्योर. इधर था स्ट्रिंजेंट एसएलए, इधर भी है स्ट्रिंजेंट एसएलए. इसके बाद एक और चीज खाली याद रख, सीसीएम याद रख. सीसीएम कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट याद रख. लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. बिकॉज हाइब्रिड क्लाउड हैज कंपोनेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, उसको मैनेज करने का थोड़ा तकलीफ. क्लाउड कंप्यूटिंग जो पर्सन इज द वेंडर हु इज बिल्डिंग द क्लाउड, जो क्लाउड बना के यूज गोइंग टू पब्लिक, ही हैज टू बी वेरी श्योर कि इसको मेरे को प्राइवेट क्लाउड कितना रखना है और पब्लिक क्लाउड कितना रखना है. मतलब कितना मुझे सिक्योर करना है और कितना पब्लिक के लिए ओपन रखना है. इसके लिए इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ बोथ एलिमेंट्स, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. ये क्या लिखा है? क्लाउड मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ यूजर्स इज हाई. नंबर ऑफ यूजर्स काफी हाई है इसमें. क्लियर? ठीक है. इसका एडवांटेज मैंने भूल गया था. क्या बोला था? क्या लिखा? द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड इंक्लूड द फॉलोइंग. इट इज हाईली स्केलेबल एंड गिव्स पावर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड. मतलब क्या? इट इज हाईली स्केलेबल. I just said S, highly scalable. मतलब it is more scalable than private cloud. Next क्या लिखा है? It provides better security than a public cloud. तो more scalable than private cloud and more scalable than more secure than public cloud. तो तेरा दोनों S high. तेरा हाइब्रिड क्लाउड का आंसर है ना सिर्फ तेरे गांव में एस 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 यही घूमना चाहिए. सिंपल है तेरा. देख क्या लिखा है? ये था तेरा हाईली स्केलेबल, इधर है तेरा स्केलेबल. ये तेरा लेस सिक्योर, ये है तेरा पार्शियली सिक्योर. ये था तेरा स्ट्रिंजेंट एसएलए, ये क्या तेरा स्ट्रिंजेंट एसएलए सेम. प्लस एक और चौथा पॉइंट आ जाता है दैट इज नॉट कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट बिकॉज यू हैव टू मैनेज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड एलिमेंट्स. तेरा जो एडवांटेजेस है यहां पे है तेरा मोर स्केलेबल देन प्राइवेट पब्लिक. प्राइवेट क्लाउड पब्लिक तो ऑलरेडी स्केलेबल है ना रे. एंड इट इज मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड बिकॉज पब्लिक क्लाउड इज नॉट सिक्योर. इजी यहां तक? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट इसमें हाइब्रिड क्लाउड क्या है? समझा सब? देख मैं सब बोलना बस. Some understanding wherein the service provider, he is providing
in hybrid cloud. Hmm. For example, you gave the example of Google. Hmm. But as a service receiver, why will I go for a hybrid cloud when I'm investing a lot for making a private cloud for myself? Hmm. I've invested a lot. So will there be a possibility wherein I'll also use the service as a private public cloud? It depends on what kind of service you require. Suppose if you want service which has a lot of data, then it will be better for you to go for public cloud because that is scalable. If I have data which is less amount of data to be stored, there's EY ka all work they are not putting in their knowledge portal. Only work in which there are queries which have been asked to the knowledge portal team. Only that has been given. That is hardly 1% of their work. उसके लिए उन्होंने क्लाउड मेंटेन किया, लेकिन उनके सारे काम के लिए उन्होंने क्लाउड मेंटेन नहीं किया. Hence, for them, private cloud is affordable. Okay. Again, if there is lot of work and if the organization does not have the capacity to do it by itself, then the organization generally goes for a hybrid cloud or a public cloud. But if the work amount is less and if the organization has the assurance that their IT department can handle it, then they will go for a private cloud because they can only manage it then. Okay, so the private cloud that they will purchase, the investment amount would be sufficing that for the data that they want to store in it. Correct. If there is more data, it is more headache. And the more headache the organization has to see whether my IT department has the capacity to sustain this headache. If they don't have the capacity, then it is better to give it to someone else who is better at it. It is like studying CA final का एक subject, studying इसका by your own. खुद अगर double technically strong है और इसका पढ़ते हैं ना तो जबरदस्त, because then you can understand whatever you are reading. But if it is not manageable, then it becomes a headache because अपने को समझना नहीं है subject. It is better to go to someone who knows the subject well. Something like that. Clear? Or did I answer की और भी queries है? So I'm not able to relate to the cost benefit analysis. See, because if it's a private cloud, also it will require some good amount of investment. Correct. So then why would I go for a public cloud as well? It is not secure. My organization का proper data will be lost. Suppose if I put this EY का thing, I can put it on Google also. Suppose I create a web page where my knowledge portal team is putting data, but then Deloitte can also check it, KPMG can also check it, PwC can also check it. तो मेरा secure नहीं रहेगा. Main वो काम बात होगी फिर. It will be secure. Clear? ठीक है. Anybody else which query? Clear. मेरे साथ बोलना. पहले अपन ने देखा था difference between. फर्स्ट आंसर याद है क्या लिखा था मैंने? Difference between private cloud और public cloud. पहले क्या था? Are also called public. Private cloud are also called public cloud are also called provider cloud. याद है? Provider cloud. Private cloud का managed by organizations IT department. Public cloud are managed by vendor or third party. Public cloud are used by organizations. Private cloud are used by public cloud. Private cloud का last point presides over organization boundary. Public cloud का last point pay per use mode. मैंने अपने characteristics of private cloud वो डायग्राम याद है? अपन ने S करके लिखा था secure. पहले क्या था? Secure. दूसरा क्या था? Centralized control. तीसरा क्या था? Small entity. चौथा क्या था? बराबर है. उसके बाद क्या था? High data security and privacy. बाद में क्या था ये? Weak service level agreement. Then we did difference between on-premise private cloud and outside private cloud. तेरा EY and Wipro वाला. अपन और उधर बेस्ट फ्रेंड का घर. तेरा MSN slope करके था कोड. M क्या था तेरा? Management. S क्या था? Service level agreement. N was network. वो slope का S क्या था? Security and data privacy. याद होगा? LO क्या था? Location. P क्या था? Performance. Simple. Then we did public cloud. Public cloud का simple है. Public cloud में अपन ने वो याद रखा था. Characteristics क्या है? Highly scalable, less secure. ये क्या था तेरा? Stringent SLA. ये क्या तेरा? Highly available. टिकमा क्या था? Affordable. No से 2 point. पहले क्या है? Do not to worry about infrastructure. No need to worry about infrastructure. And last point क्या तेरा? No limit of number of users. क्लियर है कि नहीं? अच्छा इसका ही देखो अगर आया एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड तो क्या लिखेंगे अपन? Stringent SLA, affordable, no need to worry about infrastructure and no limit of number of users. क्लियर यहाँ तक? अच्छा इसके बाद अपन ने किया था तेरा हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड सिंपल है. यही पार्ट को लेने का यहाँ पे ये तेरा हाईली स्केलेबल तो ये है तेरा स्केलेबल. ये तेरा है लेस सिक्योर तो ये बनेगा तेरा पार्शियली सिक्योर. इधर का स्ट्रिंजेंट एसएलए. इधर क्या आएगा? स्ट्रिंजेंट एसएलए. लास्ट वन क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट. याद रखना कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट बिकॉज हैव टू मैनेज बोथ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड एस्पेक्ट्स. तेरा जो एडवांटेजेस रहेगा सिंपल है. ये क्या? इट इज मोर स्केलेबल दैन प्राइवेट क्लाउड एंड इट इज मोर सिक्योर दैन पब्लिक क्लाउड. इजी यहाँ तक? ओके लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट. अच्छा नेक्स्ट देखो कम्युनिटी क्लाउड. कम्युनिटी क्लाउड का सिंपल बात समझ. कम्युनिटी क्लाउड का सिंपल बात समझ. ये इसका एक्सप्लेनेशन बाकी था वो सर्वे बना था मैंने. मैं अब्रॉड जा रहा हूँ रहने के लिए. वहां पे देखते रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है. मैं अगर खुद के लिए घर ले लूँ वहां पे पढ़ाई करने के लिए
मेरा यूनिवर्सिटी रहेगा और मेरा घर रहेगा जहां मैं रहूंगा, मैं खुद अगर घर में रहूंगा अकेले तो मेरे को रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो जनरली वी एस इंडियन व्हाट वी जनरली डू इज अपन बाकी इंडियन से वहां पे जाके बात कर लेते हैं और अपन वहां पे क्या करते हैं, रूम शेयरिंग बेसिस हो जाता है। मतलब अगर 3 रूम रहेगा और एक रूम में एक बेड रहेगा तो बेड में 2 लोग अगर सो सकते हैं तो 6 जन एक रूम को जनरली शेयर करते हैं, ऐसा सिस्टम रहेगा। बोल रहे हैं जनरली मेरे पास 2 ऑप्शन रहेगा, मैं वहां पे जाऊंगा, मैं दूंगा कि रूममेट कौन सा मिलता है, रूममेट कौन मिलता। मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि इंडियंस के साथ मैं रूममेट बनूं या तो फिर मैं फॉरेनर्स के साथ रूममेट बन सकता हूँ। फॉरेनर को ऑप्शन मिला, मैंने देखा कि मेरे पास 3 रूममेट मिल गए, एक है चाइनीज, दूसरा है तेरा जर्मन और तीसरा तेरा ब्राजीलियन वाला। मैं तो ब्राजील में वाला तेरी तो दिन रात वो सांबा डांस पे डांस करता रहता और म्यूजिक बजा रहा था। तो मैं पढ़ाई कर रहा है उधर, वो म्यूजिक बजा रहा है, ये वो उसको पढ़ने का वो तरीका एंजॉय करके पढ़ने का। तो जरूर तेरे दिन रात बियर पीता, दिन रात बियर पीता और कुछ ही घर में मस्ती करता रहेगा, टीवी का वॉल्यूम हाई रखेगा। बोला अरे पढ़ाई करने दे, वो बोलता है अरे आई डोंट नो हिंदी, ऐसा करेगा तो जमना नहीं है। चाइनीज वाला उधर अपन पाव जी खा रहे, चाइनीज वाला उधर साफ खा रहा है, मतलब क्या जमना क्या अपना उनके साथ पढ़ाई कर सकते ऐसे नारे में नहीं। अरे इंडियन रहेगा ना तो वो समझेगा दिवाली है, मतलब अपन लोग वो कपड़ा पहने की दिवाली है, समझा दिवाली है तो अपन सब पहनेगा ये। अपन में जो कल्चरल बॉन्डिंग है, क्या बोला कल्चरल बॉन्डिंग है, मैं बोले इंडिया के एक कोने से है वो दूसरा कोने से, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अपन समझ सकते हैं। तेरा कम्युनिटी क्लाउड वही है। कम्युनिटी क्लाउड इज बेसिकली अ क्लाउड विच इज शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग शेयर्ड कंसर्न्स, मतलब जिसका टेंशन एक जैसा, शेयर्ड कंसर्न्स। ध्यान से सुना मेरी बात, शेयर्ड कंसर्न्स रहेगा तो भी ना इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तेरा हर चीज सिक्योर्ड है। जैसे अगर मेरे घर से अगर मिठाई का एक डब्बा आया यूएस में, ब्रिजवासी मेरा फेवरेट दुकान मिठाई का, वहां से डब्बा आया तो मेरा दोस्त ही मेरा बैग खोल के मिठाई खाएगा ना, इंडियन रहेगा खाएगा ना कि नहीं खाएगा, खाएगा। मतलब क्या उधर तेरा सिक्योरिटी फिर भी कम लो है। तेरा भी ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं। कम्युनिटी क्लाउड इट इज बेसिकली अ क्लाउड विच इज शेयर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इन माय एग्जांपल लेट मी गिव अ एग्जांपल जिसमें सपोज दिस इज अ क्लाउड इन विच 3 ऑर्गेनाइजेशंस आर शेयरिंग इट। लेट्स टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम इंडस्ट्री। अभी उनका ऑफर गया तीनों का, क्या था, एक था तेरा फ्लिपकार्ट, एक अपन बोलेंगे अमेजॉन और एक अपन बोलते चल मिंत्रा। बोलो तीनों सेम इंडस्ट्री में ई बिजनेस में है। नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी फीचर्स होगा ना, दिस आर शेयर्ड कंसर्न, मतलब इसका भी टेंशन है, इसको भी टेंशन इन्वेंट्री का, इसको भी टेंशन है कि डिलीवरी बराबर हो रहा है कि नहीं, इसको भी टेंशन है कि कुछ लोग टाइम पास के लिए कॉल करते बोलते हैं ऑर्डर कर कैश ऑन डिलीवरी, उसका आदमी जाता है उधर बोलता है कि हम लोग नहीं चाहिए। सबका शेयर्ड कंसर्न है, सबका शेयर्ड कंसर्न है। तो व्हेन दे शेयर अ क्लाउड ना, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स विच इज बेटर, क्लियर। लेकिन एक और याद है, ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी है, मतलब क्या सिक्योरिटी का भी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम रहेगा। लेट्स सी दैट आंसर ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। क्या लिखा कम्युनिटी क्लाउड? द कम्युनिटी क्लाउड इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजनड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव शेयर्ड कंसर्न्स। एग्जांपल मिशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसी, कंप्लायंस कंसिडरेशंस, जनरली उनका सेम रहेगा। It may be owned, managed and operated by one or more of the organizations in the community, a third party or some combination of them, and it may exist on or off premise. In this, a private cloud is shared between several organizations. एक private cloud है जो बाकी सब organizations share कर रहे हैं. This model is suitable for organizations that cannot afford a private cloud and cannot rely on the public cloud either. They cannot afford their own घर, इसके वो शेयरिंग बेसिस जा रहा है। और पब्लिक क्लाउड के जा नहीं सकते बिकॉज सिक्योर्ड नहीं है। सो इन्हें क्या बोलते हैं, हम प्राइवेट क्लाउड में ही साथ में रहते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड आर एज फॉलोस। बोल रहे अगर अपन इफ आई एम स्टेइंग रेंटल बेसिस विद माय अदर इंडियन फ्रेंड्स, सब काम एक ही इंडियन करेगा कि बाकी सब भी हाथ बताएंगे। एक वन विल डू डिश वॉशिंग, एक करेगा घर का झाड़ू पोछा मारेगा, दूसरा क्या करेगा खाना पकाएगा। पीपल विल डिस्ट्रीब्यूट द टास्क अमंग देमसेल्व्स। इसमें भी सेम है। इफ यू आर मेंटेनिंग द क्लाउड ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट पीपल हु आर स्टेइंग इन दिस क्लाउड टू टेक डिफरेंट एस्पेक्ट। एक से मानेगा सिक्योरिटी वाला क्लाउड बोलेगा कि चल IICTOs की अपने इंडस्ट्री में अपने तीनों लोग अपना सिक्योरिटी एकदम जबरदस्त रहे। दूसरा बोलेगा कि अगर क्लाइंट का कुछ क्वेरी रहेगा तो मैं देखूंगा, क्लाइंट का तेरा भी क्वेरी मैं देखूंगा, इसका भी क्वेरी मैं देखूंगा, इसका भी क्वेरी मैं देखूंगा। आई विल टेक अप दैट। मतलब क्या, दे आर टेकिंग टास्क फॉर themselves. they क्या लिखा है यहाँ पर, collaborative and distributive maintenance. In this, no single company has full control over the whole cloud. This is usually distributed and hence better cooperation provides better
result. There has to be cooperation between them. ठीक है? Next, partially secure. ये मैंने स्वीट का एग्जाम्पल दिया ना, ये है partially secure. ये क्या लिखा? This refers to the property of the community cloud where few organizations share the cloud. So there is a possibility that the data can be leaked from one organization to another, though it is safe from the actual world. कोई बाहर वाला आके मेरा सूटकेस में मिठाई नहीं खाएगा, लेकिन मेरी जो घर पे रहेगा वो सूटकेस में मिठाई खा सकता. लास्ट क्या लिखा? Cost effective. As the complete cloud is being shared by several organizations or community, not only the responsibility gets shared, the community cloud also becomes what? Cost effective. Because अपन मिल बांट के जी रहे. ठीक है? ये याद कैसे करने का? कम्युनिटी क्लाउड के लिए रिमेंबर द वर्ड CDPC, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस. P से आएगा तेरा पार्शली सिक्योर एंड C से आएगा तेरा कॉस्ट इफेक्टिव. CDPC, कॉस्ट इफेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस. P से आएगा तेरा पार्शली सिक्योर एंड C से आएगा तेरा कॉस्ट इफेक्टिव. नीचे लिखा देख देखा नीचे एक सिंपल आंसर है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटी क्लाउड? देखा पहला लिखा है इट अलाउज कोलैबोरेटिव वर्क ऑन द क्लाउड. बोल रहे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने? कोलैबोरेटिव. सेम आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या यही पॉइंट को लोग ने अलग वर्ड में लिखा है. इधर था कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, इधर उन्होंने लिखा है कोलैबोरेटिव वर्क. तो दिस इज कवर्ड. नेक्स्ट, इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं काम को डिस्ट्रीब्यूट करूं या शेयर करूं, मतलब तो सेम ही हुआ ना. देख तो ऊपर क्या लिखा था? डिस्ट्रीब्यूटिव. इधर क्या लिखा उसका? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. तो वही पॉइंट को वर्ड अलग करके लिखा है. तो व्हेन यू आर राइटिंग characteristics, you have to write collaborative and distributed maintenance, partially secure and cost effective. But when you are writing advantage, you have to write collaborative work, first point. Second point will be sharing of resources. थर्ड में क्या लिखा? It has better security than the public cloud. ये देख, ये है तेरा partially secure, इधर लिखा है better security than the public cloud. मतलब क्या वर्ड इधर क्या खाली. सर लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? कॉस्ट इफेक्टिव लिखा है लास्ट पॉइंट. कैरेक्टरिस्टिक्स में इधर लिखा है इट अलाउज एस्टैब्लिशिंग अ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड. तो ये भी कॉस्ट इफेक्टिव, ये है लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड. तो बेसिकली व्हाट योर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वही तेरा एडवांटेजेस है, बट जस्ट दैट वर्ड्स आर फ्लिप्ड हियर एंड देयर. क्या बोल रहा हूं? इजी. ओके, ये तेरा हो गया लास्ट के दो आंसर. सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज योर एडवांटेजेस. दिस कंप्लीट्स आवर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का जो तेरा अमेंडमेंट था वो पार्ट. याद रख, पहला आंसर अपन लिखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड. सेकंड आंसर जो डन वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड. याद है डायग्राम वाला सिक्योर वाला डायग्राम. थर्ड वाला आंसर था तेरा डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड एंड आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड. अपना घर दूसरा घर. बाद अपन लिखा था पब्लिक क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? दैट वाज योर वो सैनो. अच्छा, दिस आई कॉल एज सैनो. SANO, सैनो. ये था तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड ऑफ सैनो. एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक क्लाउड क्या था तेरा? सैनो का ही लास्ट के पॉइंट्स. ये दोनों, ये और ये दो एडवांटेजेस. बाद में अपन ने किया था हाइब्रिड क्लाउड. क्या हाइब्रिड क्लाउड का? सिंपल था, सैनो को ही एस को अपन ने कन्वर्ट किया था. इसका एडवांटेज क्या था? सिंपल है, मोर स्केलेबल देन प्राइवेट क्लाउड एंड मोर सिक्योर देन पब्लिक क्लाउड. एंड लास्ट अपन ने किया था तेरा कम्युनिटी क्लाउड जिसका कोड था CDPC. उसका जो फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेंटेनेंस, पार्शली सिक्योर एंड कॉस्ट इफेक्टिव. उसी का एडवांटेज सिंपल है, ये आएगा कोलैबोरेटिव वर्क, डिस्ट्रीब्यूटिव की जगह आएगा शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस. इधर आएगा तेरा P से पार्शली सिक्योर, ये बनेगा मोर सिक्योर देन व्हाट? पब्लिक क्लाउड. एंड यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो ये बनेगा लो कॉस्ट. आइए बोर्ड एग्जाम में. सिंपल है, क्लियर. दिस कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट. एनी डाउट्स यहाँ पे किसी को? एक पार्ट खत्म हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इसलिए क्लियर, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट, ब्यूटीफुल अमेंडमेंट इन योर पोर्शन, जो रिविजन रिक्वायर्ड और अच्छा किया आईसीआई ने डाला वो. ठीक है. वेल वी लर्न थ्री कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट IaaS, PaaS एंड SaaS, जिसको IaaS बोलते हैं, PaaS बोलते हैं एंड SaaS बोलते हैं. ठीक है. नाउ ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसका जरूरत क्या है ये अपन देखते हैं. एक खाली ब्रीफ इसका बताने दो कि एक्चुअली होता क्या. Organizations now generally organizations do not have time to worry about these cloud. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट हैव टाइम टू वरी अबाउट मेरा डेटा विल मेंटेन कैसा है, डेटा वो मेंटेन है कि नहीं है. सो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट दे प्रेफर इज कि ये सब काम आउटसोर्स करना किसी और को. तो वो जो बंदा जिसको आउटसोर्स करना दे रहा हूं, दे विल मैनेज एंटायर अफेयर्स. भी आउटसोर्स में कितने लेवल का काम मैं उसको आउटसोर्स करने दे सकता हूं. ठीक है. नाउ लेट्स सी दिस. सपोज मुझे खुद का कंप्यूटर मशीन लेना ही नहीं, आई डोंट वांट माय ओन कंप्यूटर मशीन. मैं चाहता हूं कि किसी और की कंप्यूटर मशीन में सब कुछ स्टोर हो. ठीक है. मेरे खुद की कंप्यूटर मशीन मुझे चाहिए नहीं. ओके, तो एक मेरा काम रहेगा कंप्यूटर मशीन का.
का इश्यू हो सकता है कि आई डोंट वांट मेरा स्टोरेज स्पेस, कोई मेरा जो डेटा है मेरा स्टोरेज स्पेस खाए, मैं चाहता हूँ कि किसी और के पास मेरा डेटा स्टोर रहेगा तो चलेगा। अच्छा, अग्रीमेंट स्ट्रिक्ट रहेगा, बट किसी और के पास रहेगा स्टोरेज डेटा तो चलेगा। मतलब क्या सेकंड रिक्वायरमेंट में रहेगा स्टोरेज के रिलेटेड। तीसरा बोलूंगा कि मेरे पास इतना अच्छा नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब मेरे पास इतने अच्छे ऑप्टिक फाइबर के केबल नहीं है, या आई डोंट हैव सच कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कोई और मुझे प्रोवाइड कर सकता है। मतलब मेरे काम अच्छा होने के लिए नेटवर्क शुड बी वेरी गुड, तो मेरा काम फास्ट होगा। पर आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इन माई नेटवर्क। मैं क्या होगा, लेकिन वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आई रेडी टू गिव मी नेटवर्क सर्विसेज, तो मेरा तीसरा रिक्वायरमेंट शायद रहेगा नेटवर्क का। मेरा जैसे एक बार गड़बड़ क्या बताएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी कभी ना जरूरत से ज्यादा डिमांड आ जाता है, जरूरत से ज्यादा डिमांड आ जाएगा। मैं वो जरूरत से ज्यादा डिमांड के लिए आई हैव गॉट 2 ऑप्शंस। वो डिमांड आता है तेरे तो साल में एक बार, उसके लिए मेरे को 5 करोड़ का मशीनरी लगाना पड़ेगा और डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा, वरना 5 करोड़ का मशीनरी पूरा साल बैठा रहेगा खाली उधर अगले साल आने तक। और मैं एक आदमी को पकड़ता जो बोलता कि भाई मेरा डिमांड ये दिन पे बहुत बढ़ रहा है, एक काम कर खाली ये एक दिन के लिए थोड़ा काम तो मैनेज कर सकता है क्या, कुछ क्लिक और दिमाग में। और याद है अपनी वीडियो देखा था जिसमें लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशन इंस्टेंसेस था, मतलब क्या एक पे लोड बढ़ गया तो दूसरा मेरा काम कर रहा है, इसको अपन बोलते हैं लोड बैलेंसर्स। तो ये मेरा चौथा हो सकता है, लोड बैलेंसर्स। अभी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीज खुद से नहीं करना और वो अगर किसी और को दे रहा है, दीज कम अंडर द टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या किसी बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैंने मेरा इसमें से कोई भी एक काम या 2 काम या 3 काम या 4 काम किसी और को दिया मैंने, और वो ऑर्गेनाइजेशन ने अग्री किया ये सब वो सर्विस को प्रोवाइड करेगा, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग मी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इट इज प्रोवाइडिंग मी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वो क्या बोलता है, एक काम कर, मैं तेरे को कंप्यूटर मशीन देता, मैं तेरे को स्टोरेज का स्पेस देता, मैं तेरे को नेटवर्क भी देता, मैं तेरे को लोड बैलेंसर भी देता, लेकिन मैनेज और मेंटेन तेरे को करना है, मैनेज और मेंटेन तेरे को करना है। मतलब क्या, वो अपने को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। मतलब बेसिकली द पर्सन इज जस्ट गिविंग यू अ रोड, रोड में गाड़ी चलाना, रोड में एक्सीडेंट ना हो, रोड का क्लीनिंग, ये सब काम किसका, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का। ही इज जस्ट गिविंग यू अ रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगे दे रहा है। क्लियर। अच्छा, मेरे को तेरी तो मैनेज करने का भी टाइम नहीं, आई डोंट हैव इवन टाइम टू मैनेज माई, इसके अंदर जो भी डेटा मेरा रहेगा वो मैनेज करने का मेरे को टाइम नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि यार मेरे को मैनेज करने का टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस का बहुत काम है, आई कैन नॉट मैनेज इट। तो मैं बोलता हूं कि मेरा जो एप्लीकेशन है दैट आई कैन नॉट मैनेज। जनरल ये सब में जो डेटा रहेगा ना, उसका मैनेजमेंट का मूड मेरे को करने का नहीं, आई डोंट वांट टू मैनेज ऑल दीस थिंग्स, बहुत ज्यादा काम है। आई डोंट वांट टू इवन मेंटेन ऑल दीस थिंग्स। मेरे को मेंटेनेंस का भी तू कर, मतलब अगर कुछ खराब हुआ ना तो मेरे पास बता, तू ही ठीक कर ले, कि मेरे पास बिजनेस का बाकी काम है, मैं इसमें से करूंगा तो बिजनेस का भी करूंगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि अच्छा इसको कंप्यूटर मशीन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, लोड बैलेंसर चाहिए, प्लस वो चाहता है कि वो मैनेज नहीं करेगा, वो चाहता है कि मैं खुद इसके लिए मैनेज करूं या मेंटेन करूं या एप्लीकेशन जगह पे डालूं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इधर ऑर्गेनाइजेशन रेडी टू डू ऑल दी सर्विसेज, मतलब क्या, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, then it is not only giving me infrastructure, it is giving me the entire platform. इसको अपन बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। मतलब प्लेटफॉर्म एज सर्विस में दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग मी मोर देन जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज गिविंग मी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ऑल दीज एक्टिविटीज ऑल्सो। क्लियर? तो डाउट यहां तक क्लियर समझो? अगर वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन एंड मैनेज करने का भी फैसिलिटी दे रहा है, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, पूरा एंटायर प्लेटफॉर्म दे रहा है। मतलब मेरे को तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है उस सब चीज के बारे में। ही इज गिविंग मी द फुल सर्विसेज। इजी? क्लियर? लेट्स सी द पॉइंट्स। क्या लिखा ऊपर? ये डायग्राम दिया है, यू कैन रेफर दैट डायग्राम, इफ नॉट, इफ यू इग्नोर इट आल्सो नो प्रॉब्लम। ये क्या लिखा आ गया? The essential characteristics of the cloud include on-demand self-service, broad network access, resource pooling करके होता है, rapid reliability and measured service. The National Institute of Standards and Technology, which is actually based in US, defines 3 basic service models: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Software as a service क्या अपन बाद में देखते हैं। infrastructure service में मैंने क्या लिखा देखा। Look at the diagram. What infrastructure service में जनरली क्या प्रोवाइड करता है? वो कंप्यूट, मतलब तेरा कंप्यूटर मशीन्स, दूसरा है तेरा नेटवर्क या दूसरा तेरा स्टोरेज, तीसरा देता है तेरे को क्या, नेटवर्क देता है, एंड लास्ट में व्हाट इट गिव्स यू इज लोड बैलेंसर्स। ठीक है, क्या लिखा है? आई विल रीड दैट पार्ट। और टिपिकल IaaS प्रोवाइडर may provide the following services.
compute. Computing as a service includes virtual central processing inputs, central processing units, and virtual main memory. Main memory. Please make a change. Main memory and virtual main memory for virtual machines that are provisioned to the end user. Storage related STAS, storage as a service, provides backend storage for the virtual machines, virtual machines images. Some of the IaaS providers also provide the backend for storing files. तेरा सब कुछ स्टोरेज का काम ये करके देगा स्टोरेज एज सर्विस में. Network as a service provides virtual networking components such as virtual router, switch, bridge for the virtual machines. तेरा जितना भी network का issues है that they are ready to solve. Last is the load balancers. Load balancing as a service may provide load balancing capability at the infrastructure layer. मतलब एक पर अगर प्रेशर बढ़ गया तो दूसरे में ट्रांसफर करने का capability. They are ready to provide that. मतलब what IaaS is ready to provide, what services are ready to give is simple. जो मैंने उधर लिखा हुई है compute, diagram देखना, compute, स्टोरेज, दोनों की क्या रहना चाहिए, नेटवर्क. स्टोरेज अगर बढ़ गया बहुत काम तो किससे जाएगा, लोड बैलेंसर. कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, लोड बैलेंसर्स. इजी. नेक्स्ट पे आ जाओ. We are looking at the characteristics of infrastructure as a service. Infrastructure as a service has to be centrally managed. अगर इसमें 5-6 लोग एक साथ मैनेज करेंगे ना तो खिचड़ी पड़ेगा, because you are providing some service to the client. It is better that one person leads the way. मतलब तेरा मैनेजर एक ही रहेगा जो तेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा तेरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. तो सपोज इफ आई मेक दिस डायग्राम, तेरा कंप्यूट, तेरा स्टोरेज, इसके बीच में नेटवर्क और यहाँ पे तेरा लोड बैलेंसर. इज दिस थिंग हैज टू बी सेंट्रली मैनेज. सेंट्रली मैनेज, उधर का सेंट्रलाइज कंट्रोल, इधर सेंट्रली मैनेज्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक्स के लिए ऐसा होता है कि इनको बहुत काम आएगा, नहीं वाला काम नहीं करेगा, मतलब कैपेबिलिटी फुल है, ऐसा सकता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन विल lose on its customer demand. तो it has to show what elasticity and dynamic scaling. तो इधर मैं लिख रहा हूं elasticity and dynamic scaling होना चाहिए. तो सेंट्रलाइज मैनेज होना चाहिए, इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग होना चाहिए. बोल रहे यू एज अ यूजर, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन इफ आई टू यूज दिस सर्विसेज ऑनलाइन, तो मुझे एक चीज की जरूरत है, वो क्या है, इंटरनेट है. अच्छा, अगर मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेब एक्सेस. तो आई विल एक्सेस यूजिंग ऑल दी सर्विसेज आर एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट. तो मेरे जो वाईफाई का टाइप सिंबल बना दैट इज द इंटरनेट. नहीं क्या लिखा, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. खाली मैं अकेला बंदा है क्या जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहा है? नहीं, उसके पास क्या रहेगा, बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा. वो स्पेस का थोड़ा टुकड़ा मेरे को देगा, थोड़ा टुकड़ा किसी और को देगा, थोड़ा टुकड़ा किसी और को देगा. मतलब क्या, मेनी यूजर्स आर यूजिंग द सेम रिसोर्सेस. यहां पे किसी ने गूगल, यहां पे किसी ने ड्रॉपबॉक्स यूज किया, ड्रॉपबॉक्स. हाँ, ड्रॉपबॉक्स में क्या अपने लिए बॉक्स होगा यूज गूगल की कंपनी में नहीं है. गूगल के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, उसमें थोड़ा टुकड़ा तेरे लिए 5 GB तेरे लिए, 5 GB तेरे लिए, 5 GB तेरे लिए, 5 GB तेरे लिए. सो इफ यू हैव अ जीमेल अकाउंट, गूगल इज रेडी टू गिव यू 5 GB ऑफ फ्री स्पेस टू स्टोर डेटा. क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं. तो बोल रहे खाली मैं अकेला गूगल को यूज कर रहा है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं. मतलब क्या, इट हैज शेयर्ड व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये क्या लिखा, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर. Infrastructure as a service follows a one-to-many delivery model and allows multiple IT users to share the same physical infrastructure and thus ensure high resource utilization. Clear? लास्ट पॉइंट है मेरा, मीटर्ड सर्विसेज. मतलब वही तेरा पेपर यूज मोड. मैं जितना यूज करते जाएगा ना उतना मेरे को चार्ज लोग मारते जाएंगे. तो मैं गूगल का गूगल ड्राइव, इफ यू यूज गूगल ड्राइव एंड उससे तुम लोग अगर सेव कर जाओगे ना, आफ्टर सर्टेन लिमिट ना गूगल विल सेंड यू नोटिफिकेशन सेइंग दैट कि beyond this point please give your debit card or credit card details because now they are going to charge you. Clear? ये मीटर सर्विसेज. देखा लिखा, infrastructure as a service allows the IT users to rent the computing resources instead of buying it. The services consumed by the IT user will be measured and the user will be charged by the IaaS provider based on the amount of usage. Metered services. If you look at the diagram ना, तेरा है पहले centralized management, next है तेरा इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग. ये अपन यूजर कैसे कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है वेब एक्सेस के थ्रू. अच्छा, खाली एक ही यूजर है कि बहुत सारे यूजर्स है, बहुत सारे यूजर. मतलब क्या, देयर इज नॉट ओनली वन यूजर, देयर आर लॉट ऑफ यूजर. मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इधर भी खाली इनका वेब एक्सेस के लिए डब्ल्यू है, इधर है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर.
क्लियर. लास्ट है जरा, इन लोग पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा. मतलब क्या इन लोग को पैसा देना पड़ेगा. इसको कौन बोलेंगे? मीटर सर्विसेज. क्या बोलेंगे अपन? मीटर सर्विसेज. इजी. दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का पॉइंट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस सिंपल है. देख क्या बोल रहा हूं मैं तेरा. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का पहले इंट्रो क्या था? इंट्रो में इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जनरली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? तो कंप्यूट देता, कंप्यूटर मशीन. उसका क्या देगा तेरे को? स्टोरेज. और सेकंड क्या देगा? थर्ड क्या देगा? नेटवर्क. एंड फोर्थ का देने के लिए रेडी है लोड बैलेंसर्स. इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शुड बी सेंट्रलाइज कंट्रोल और नॉट? ये सेंट्रली मैनेज होना चाहिए. अच्छा, जैसे डिमांड बढ़ेगा ये ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब क्या? इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग होना चाहिए. थर्ड क्या है तेरा? क्या वेब एक्सेस. मतलब क्या? यूजिंग इंटरनेट आई शुड बी एबल टू एक्सेस वेब एक्सेस. फोर्थ पॉइंट क्या आएगा इसमें? शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा तेरा? मीटर्ड सर्विसेज. इजी सिंपल है. दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. Platform as a service. You are looking at platform as a service. Characteristics of platform as a service are as follow. ऊपर लिखा है ABCD वो करके कोई लिखा ABCD वो. वेरी सिंपल. देख क्या लिखा वो. Isn't it giving me all the services at once इधर? तो मतलब क्या ये ऑल इन वन है? ये क्या है? ऑल इन वन. अच्छा, वो इसमें डिमांड आएगा तो खुद ब खुद ही ग्रो होना चाहिए कि बोलेगा कि नहीं अभी तेरे लिए काम नहीं करेगा? खुद ब खुद ग्रो होना चाहिए. मतलब क्या? देयर शुड बी बिल्ट इन स्केलेबिलिटी. बिल्ट इन स्केलेबिलिटी. क्लियर. इसका एक बार अंदर का पढ़ लेते क्या लिखा? ऑल इन वन. मोस्ट ऑफ द PaaS मतलब क्या? प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर सर्विसेज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, होस्ट एंड मेंटेन एप्लीकेशंस इन द सेम integrated development environment. So the environment in which they will develop it, the environment in which they will develop it, they will also properly see to it that they are maintaining it also properly. That is called integrated development environment. Very important word है. लास्ट में भी एक बार यूज होगा. IDE बोलते हैं इसको. तो है नेक्स्ट built-in scalability. क्या लिखा? Platform as a service, platform PaaS services provide built-in scalability to an application that is developed using any particular platform as a service. This ensures that the application is capable of handling varying loads efficiently. मतलब जितना भी डिमांड आएगा it should have the capacity to tolerate it and work efficiently. Collaborative platform. To enable collaboration among developers, most PaaS providers provide tools for project planning and communication. Now, lot of researches are being conducted over the cloud. मतलब क्या? There are researchers who are sitting in Europe, Japan, India, USA, and they can collaboratively work together because of using platform as a service. मतलब क्या? उन लोगों को सबको एक login ID दिया जाता है. And login ID से suppose if this is the entire world, इधर है जर्मनी, इधर है USA, इधर है इंडिया, इधर है जापान, इधर है suppose साउथ अफ्रीका. If the researcher is using from here, they can all do the same research activity from different part of the world because they are using the same platform. Are you getting a point? देख. Collaborative platform to enable collaboration among developers. Most of the PaaS providers provide tools for project planning and communication. It provides all the tools necessary. Diverse client tools. इसका बहुत technical word है यहाँ पर एक. PaaS providers offer a wide variety of client tools like web user interface, application programming interface, etc. to help the developers to choose the tool of their choice. ये सब technical words ना देंगे अपन डर जाता है. When I was also studying इसका मतलब first time तेरे तो ये क्या, तेरे तो ये क्या, तेरे तो ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा. Web user interface simple. Interface का हमेशा मतलब ये होता है how the interaction is taking place. Web user interface is how you are interacting with the system or to the web online application. That is called web user interface. फिर सेकेंड अब लिखा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. दैट इज API टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज हाउ योर वन एप्लीकेशन इज इंटरेक्टिंग विद द अदर एप्लीकेशन. You guys are going to different websites. If you go to different websites ना और तुम लोग के पास तुम लोग अपना नॉर्मल ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करने का, तो उधर आजकल नया ऑप्शन आता है. क्या आता है? लॉगिन विद फेसबुक करके आता ही नहीं आता. लॉगिन विद फेसबुक. सपोज यू गो टू स्काइप और स्काइप में अगर तुम लोग लॉगिन करेगा तो उधर आएगा लॉगिन विद फेसबुक. सो यू लॉगिन विद तुम्हारा फेसबुक का खाली तुम लोग ओपन करना चाहिए तुम्हारा पेज वेर यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन. और तुम लोग लॉगिन फेसबुक करेगा ऑटोमेटिकली और स्काइप फेसबुक के साथ इंटरेक्ट करेगा और तेरे को स्काइप का भी एंट्री मिलेगा. मतलब स्काइप का भी लॉगिन दे देगा. What is happening here is one application that is Skype is interacting with the other application that is Facebook. इसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. API. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. नेक्स्ट है वेब एक्सेस टू द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म. PaaS providers web access to the development platform that helps the developers to create, modify, test and deploy different applications on the same platform. मतलब using internet I can
provide the services on a particular platform. That is what they are trying to say. Last है तेरा offline access. देखना very important point क्या लेगा. To enable offline development, some of the PaaS providers allow the developer to synchronize their local IDE. देखो पूरा अपने IDE पढ़ा था क्या है? IDE क्या था? Integrated Development Environment. Local IDE with the PaaS services. The developers can develop an application locally and deploy it online whenever they are connected to the internet. Basically, PaaS will give you some certain guidelines saying that okay, if you want to upload an application, you have to give me an application in this format. मैं वो format में पहले से offline, मेरा internet चल रहा नहीं है, मैं offline उसको ready करके रखूंगा. And as soon as I am able to get the web access, जो तुम लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा था, I will send it to the PaaS provider, saying that कि देख मेरे को ये चाहिए तो ये करके दे मेरे को. Basically, I'll give you one more example. My website now, मेरे क्लास का वेबसाइट है ना, उसमें ना we put that toppers का list. तो toppers का list we professional division started recently, but commerce division has been running. So college का ना TI, BCom, TI, BAF, BMS, that has been going on the last 15-20 years now. Now that commerce division का we have given a list of achievers. How many students ने क्या क्या achieve किया? So I told the web developer की ये जो achievers है, how do you want it? तो उसने बोला कि आप मुझे एक Excel sheet बना के देना. किसमें बना के देना? Excel sheet में. So what I do is I put an achievers का list. He has given me a specific format. वो format में मैं सबका नाम, subject और उसको डाल देता हूँ. And I send it to the web developer. मेरा जो website जिसे बनाया उसको. And then he later integrates it on the website. He later integrates it on the website. तो बोल रहे मैं इंटरनेट मेरे को इंटरनेट की एक्सेस की जरूरत है क्या? When I am making the Excel sheet, not required. So even if I don't have online access, मेरे पास web access नहीं है, still I can develop a model and then send it to him, and then he will integrate it in the integrated development environment, which is the web page in this case. Clear? Easy. याद रख ABCD वो है, simple है, all in one, built-in scalability, collaborative platform. D से आएगा तेरा diverse client tools, जिसमें you have two very important one, that is your web user interface WUI and application programming interface, that is your API. बाद में तेरा आएगा वेब एक्सेस टू द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंड लास्ट आएगा तेरा ऑफलाइन एक्सेस. यू कैन कॉल दैट लास्ट टू पॉइंट वेब एक्सेस एंड ऑफलाइन एक्सेस. वो का क्लियर? देख फर्स्ट पॉइंट क्या था तेरा ऑल इन वन. बी से क्या था बिल्ड इन स्केलेबिलिटी. सी से क्या था कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म. डी से क्या था डाइवर्स क्लाइंट टूल्स. डब्ल्यू से क्या था वेब एक्सेस. ओ से क्या था ऑफलाइन एक्सेस. एक ही आंसर है इसमें. प्लेटफॉर्म देयर इज ओनली वन आंसर, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे there is only one answer, that is your characteristics. Easy, simple यहाँ तक clear. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अच्छा, अभी अपन ने अभी देख लिया कि प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज सर्विस? डू यू यूज ईमेल? बस, दैट इज सॉफ्टवेयर एज सर्विस. That's software as a service. There is a particular software which connects connect the sender to the receiver. That is software as a service. Clear? On Facebook, you can upload pictures. You can comment on your friends' photos. You can upload your own status. You can put your check-in कि अपन कहाँ गए. ये सब डाल सकते. All this is software inbuilt in the Facebook application. So that is also software as a service. कहने का मतलब क्या है? Software as a service is basically a software that the user is using. याद रखना, software as a service में user खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है. यूजर खुद ही मैनेज करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका है? बाहर वाले का. Aren't you using your own laptop while going on Facebook? Yes, you are using. Aren't you yourself going on Facebook? You are using. मतलब मैनेजिंग कौन कर रहा है? अपन ही कर रहे हैं. लेकिन फेसबुक के पास क्या है? सॉफ्टवेयर है. दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अपन जीमेल में जाते हैं, जीमेल में मेल डालते हैं. Who is typing the mail? I am typing the mail. Who is managing my account? I am only managing my account. But is Gmail giving me a software where I can attach documents, where I can format the email properly? All this Gmail is giving me. That is called software as a service. Simple. ठीक है, देखिए software as a service. The service provided by SaaS are as follows. पहले है business service. Business service किसके कौन से फॉर्म में देगा? देखो, SaaS providers provide a variety of business services to startup companies that include ERP. What is ERP? Enterprise Resource Planning. या SAP का प्लेटफॉर्म और SAP का सॉफ्टवेयर एंड ऑल दीज थिंग्स. CRM. What is CRM? Customer Relationship Management. ठीक है, बिलिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सब एरियाज में सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज अवेलेबल. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड सर्वे मंकी. आर यू अवेयर ऑफ इट? सर्वे मंकी. इट इज अ फीडबैक प्लेटफॉर्म.
वो सॉफ्टवेयर बिल्ड ओनली फॉर फीडबैक. बेसिकली सपोज इफ I take to the lecture here today and I take all your numbers and I send you a link saying that ये tell me where I can improve. और मैं क्वेश्चन में कुछ सेट करता हूँ कि ऐसा ये एरिया इंप्रूवमेंट, ये एरिया में इंप्रूवमेंट, ये आंसर में इंप्रूवमेंट, अच्छा ये बड़ा समझा नहीं तो ये बेटर मैं कहीं और मैं लेक्चर वहां पर अच्छे से सिखा सकता हूँ. आई गिव दिस फीडबैक ऑफ दिस. दैट फीडबैक का कैसे देना है, ऑल दिस इज ऑलरेडी प्रॉपरली देयर इन सर्वे मंकी के प्लेटफॉर्म में. सो आई जस्ट सिलेक्ट द क्वेश्चन, आई टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑलरेडी उनमें प्री फिल्ड है. तो आई डोंट हैव टू सिट एंड मेक अ फीडबैक फॉर्म. मुझे ऑलरेडी फीडबैक फॉर्म है. आई जस्ट सिलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वांट. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर? दैट इज अ सॉफ्टवेयर सर्विस. सो दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस सर्विसेज. नेक्स्ट क्या है? सोशल नेटवर्क. जैसे मैंने बोला सोशल नेटवर्क मतलब क्या? फेसबुक. देख क्या लिखा? सिंस द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. वो लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द परफेक्ट मैच फॉर हैंडलिंग द वेरिएबल लोड बिकॉज स्केलेबिलिटी इजीली मिल सकता है इसमें. Next is document management. Most of the SaaS providers provide services to create, manage and track electronic documents as most of the enterprises extensively use electronic documents. So document management में it helps. Last there are mail services. जो मैंने बताया था Gmail वाला. To handle the unpredictable number of users and load on email services, most of the email providers offer their services as SaaS services. सो इसलिए मैं ना मेरे बिजनेस का काम कर रहा था. आई वॉज डूइंग माय बिजनेस का काम और सडनली ना मेरे फेसबुक फ्रेंड ने मैसेज दिया. पता है मैसेज क्या था ना? वन मैसेज करके मैं मैसेज खोला था. मैसेज में लिखा था, एक मैसेज में डॉक्यूमेंट अटैच था. मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो उसमें लिखा था कि चेक योर ईमेल करके. बस इतना लिखा था. क्या लिखा था? चेक योर ईमेल करके. क्या लिखा? पहले बिजनेस काम कर रहा था, मतलब बिजनेस सर्विसेज. मेरे फ्रेंड ने फेसबुक पिंग किया मेरे को, मतलब क्या है सोशल नेटवर्क. उसने मुझे क्या भेजा? एक डॉक्यूमेंट भेजा. डॉक्यूमेंट में लिखा था चेक योर मेल, मतलब क्या मेल आवर सर्विस. बिजनेस सर्विसेज, सोशल नेटवर्क्स, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड मेल सर्विसेज. इजी? क्लियर? अच्छा, नाउ नीचे थोड़ा डायग्राम देखिए ना. दैट विल लुक समवॉट सिमिलर टू अपना IaaS वाला डायग्राम. ठीक है, ध्यान से देखा क्या क्या चेंजेस मैं खाली बोल रहा हूं. इधर ना तेरा कंप्यूट, नेटवर्क, स्टोरेज, लोड बैलेंस है, ये कुछ नहीं, खाली एक ही चीज है. क्या है? सॉफ्टवेयर. एक ही है सॉफ्टवेयर. ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये भी बहुत सिमिलर है. उधर था तेरा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. इधर भी अगर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. अच्छा, उधर क्या था? इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग. इधर क्या? बेटर स्केलेबिलिटी. मतलब स्केलेबिलिटी के वही पॉइंट है, बेटर स्केलेबिलिटी. ठीक है. तीसरा है उधर था तेरा वेब एक्सेस. इधर भी तेरे पास क्या? वेब एक्सेस. क्लियर? अच्छा, उधर था शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. शेयर्ड में अगर कोई एक और तरीके से बोलेंगे ना तो बेसिकली एक जगह पे बहुत लोग यूज कर रहे हैं. मतलब क्या? वन टू मेनी. सिंपल है. तो जस्ट चेंज ऑफ वर्ड. शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वर्ड यूज किया? वन टू मेनी. अच्छा, उधर एम से एक पॉइंट था मीटर सर्विसेज. यानी मीटर सर्विसेज. इधर एम से पॉइंट है मल्टी डिवाइस सपोर्ट. क्या बोलेंगे अपन इसको? मल्टी डिवाइस सपोर्ट. मतलब मेरा फेसबुक मेरे आईफोन में भी चलेगा, एंड्रॉइड में भी चलेगा, आईपैड में भी चलेगा, नोकिया के फोन में चलेगा, विंडोज प्लेटफॉर्म भी चलेगा, कहीं भी चलेगा. क्लियर? तो इट इज मल्टी डिवाइस सपोर्ट. अच्छा, लाइक में दो पॉइंट एडिशनली ऐड होते हैं. एक है कि बिकॉज स्केलेबिलिटी इज मोर, अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी हाई. सो इधर एक पॉइंट आ जाएगा हाई अवेलेबिलिटी. और मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बताया था कि वन एप्लीकेशन हैज द पावर टू इंटरेक्ट विद द अदर एप्लीकेशन. कैन फेसबुक बी इंटीग्रेटेड विद अदर एप्लीकेशन स्काइप जैसे? यस. मतलब क्या? एपीआई इंटीग्रेशन मिलता है. तो जो अपना फ्लो है ना पॉइंट्स का, इफ यू लुक एट दैट डायग्राम इट हैज गिवन, ऊपर लिखा है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, वो BS मतलब बेटर स्केलेबिलिटी. थर्ड है जरा वेब एक्सेस. फोर्थ है जरा वन टू मेनी. फिफ्थ में इधर एम से पॉइंट था मीटर सर्विसेज. तो इधर पॉइंट क्या है? मल्टी डिवाइस सपोर्ट. ए से तेरा दो पॉइंट एडिशनली ऐड हो जाता है. इधर हो जाता है ऐड पॉइंट क्या हो जाता है? हाई अवेलेबिलिटी. इधर क्या पॉइंट आया होता है? एपीआई इंटीग्रेशन. तो ए से नीचे एक पॉइंट, ए से ऊपर एक पॉइंट. क्या बोल रहा हूं? इजी? तो इसमें है तेरा SaaS में पहला अपन ने देखा था सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड होता है SaaS में. दूसरा अपन ने देखा सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है SaaS का. ओके, now we are going to start with the next topic, that is Web 1.0, 2.0 and 3.0. ये अमेंडमेंट है तुम लोग का. And it is very important to know what this is. खाली एक brief introduction दे रहा हूँ what this is. कि Web 1.0 मतलब पहले क्या था कि there were some users अच्छा उसमें क्या था कि there were some users who used to upload content on the web page and बाकी जो सर्विस ले रहे उनका उन लोग खाली वेब पेज को देखते थे. They never used to add content on their web page. मतलब एक कोई वेब पेज बनाएगा और कोई लोग उसको खाली देखते थे. They never used to add things on it.
इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक HTML पेजेस, मतलब स्टैटिक, उसमें कुछ और ऐड नहीं हो सकता. पहले वो जनरेशन था, दैट वाज कॉल्ड वेब 1.0. Then after some time things started evolving and then all these applications like Facebook और कुछ का पहले फिर Facebook आए, ये सब आने लगे. फिर what happened, there is content sharing at a very high level, मतलब कोलैबोरेशन मस्त होता है. जैसे अगर मैंने कुछ फोटो अपलोड किया, मेरा फ्रेंड उसे कमेंट करेगा, मेरा कोई फ्रेंड को लाइक करेगा, जैसे किसी ने बोला कोई अपन टैग कर सकते किसी एक और फ्रेंड को. सो व्हाट इट इज डूइंग इज वी आर ओनली जनरेटिंग द कंटेंट एंड वी आर ओनली एनहांसिंग द कंटेंट. मतलब क्या, मैं अगर मैंने आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं डालूंगा आई एम इन फ्रंट ऑफ गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट के सामने हूँ मैं, वैसे तो मैं फोटो डालूंगा, वो फ्रेंड बोलेगा कुछ कमेंट पास करेगा टाइम पास. माने वो एक दिन कहीं वो कोकरा गया, कोकरा में वो रसगुल्ला खा रहा था, कह रहा है ईटिंग रसगुल्ला इन कोलकाता, ये तो कमेंट पास करेगा. मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज ही इज जनरेटिंग कंटेंट, आई एम कमेंटिंग, आई एम जनरेटिंग कंटेंट, ही इज कमेंटिंग. ऐसा अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना तो देयर इज इंटेंस कोलैबोरेशन इज हैपनिंग. दिस वाज वेब 2.0, दिस वाज वेब 2.0. वेब 3.0 अभी आ गया मार्केट में. वेब 3.0 विल नाउ चेंज हाउ थिंग्स वर्क. देखा गया वहां पर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेब 1.0, 2.0 एंड वेब 3.0. वेब 1.0 मतलब एकदम कुछ नहीं, मतलब somebody will create the page and you are just going and looking at the page, so there is no interaction happening, collaboration नहीं है कुछ. देखा लिखा वहां पर वेब 1.0 is also known as read only web, which is basically deals with static HTML web pages, static HTML web pages. There is no dynamic aspect है ही नहीं कुछ. वेब 2.0 का था फेसबुक वाला एग्जांपल. देखिए हो रहा है रीड राइट वेब हो रहा है, डायनामिक वेब है, मतलब इंटरेक्शन के लिए एनहांस कर रहा है डायनामिक वेब. ओपन कम्युनिकेशन इज एनकरेज्ड, हेंस बिकॉज़ देयर इज ओपन कम्युनिकेशन देयर इज आल्सो व्हाट ग्रेटर कोलैबोरेशन. अच्छा, इसका कहां पे काम आ सकता है? इट हैज एप्लीकेशन इन मार्केटिंग, एजुकेशन एंड सोशल मीडिया. ठीक है, लास्ट में है कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया, इसमें यूज कर सकते हो. कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया करके एक आंसर है, यू हैव एन आंसर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें आता है ब्लॉगिंग, कम्युनिटीज, विकी, फाइल शेयरिंग, पॉडकास्टिंग, मैशअप्स, फोक्सोनॉमी, ये सब पॉइंट्स है. सो ऑल दीस पॉइंट्स यू कैन राइट इन दिस. ठीक है, सो बिकॉज दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट, आई हैव नॉट इंक्लूडेड, बट हियर यू कैन राइट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मीडिया को कॉमा कॉमा करके यू कैन जस्ट राइट द पॉइंट्स. ठीक है, अगर तो यू अंडरस्टूड वेब 2.0 इज फेसबुक करके लेने का. इसका कोड लिख रहे हैं इसका वेब 2.0 का. प्लीज राइट द कोड एज r.appco, r.appco. r.appco. ठीक है, वेब 3.0 वेब 3.0 अभी अपने जो दिखा उसके बाद कनेक्ट कर. वेब 3.0 इज नॉट ओनली रीड राइट वेब, इट इज रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वेब. ठीक है, नाउ आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि क्या क्या होता है. समटाइम क्या ये मेरा एक्चुअली हुआ है, once I was booking a flight ticket for my parents and I to travel to Delhi. तो मैं I went to makeMyTrip.com और उधर मैं फ्लाइट के बुकिंग के उधर गया था. आई सर्च मुंबई दिल्ली के फ्लाइट का मैंने सर्च किया, लेकिन बुक किया नहीं टिकट. मैंने सर्च करके और बैक चला गया. देन आई वेंट टू सम अदर साइट टू कंपेयर द प्राइसेस. तो ये मैंने किया और मैंने लगा कि छोड़ मैंने बुक करता करके मैंने बंद किया. मैंने नेक्स्ट टाइम मैंने ओपन फेसबुक ना, फेसबुक में जो एड दिखा ना मेरे को मेक माई ट्रिप का एड दिख रहा था. मैं बोला चल ठीक है कोई इंसिडेंस रहेगा. और मेक माई ट्रिप में भी खाली मेक माई ट्रिप का एड नहीं, मेक माई ट्रिप का बॉम्बे दिल्ली फ्लाइट का लो कॉस्ट का एड, लो बॉम्बे दिल्ली लो कॉस्ट फेयर उसका एड दिख रहा था. यही नहीं, अगर किसी को bookmyshow.com और bookmyshow.com में मैंने कोई शो पे खाली गो थ्रू किया है 15-20 मिनट के लिए और बाद में तुम्हें फेसबुक रहेगा ना, तुम लोगों को बुक माई शो का एड दिखेगा फेसबुक पे. मतलब द इंटरनेट वर्ल्ड क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर रिक्वायर्स. मतलब ये आईपी एड्रेस में वो यूजर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए दैट द इंटरनेट इज एबल टू गिव यू, या द वेब वर्ल्ड इज एबल टू प्रोवाइड इट टू द यूजर. इसको अपन बोलते हैं डेटा वेब टेक्नोलॉजी. ठीक है, डेटा वेब टेक्नोलॉजी का इसको लिखा नहीं हो रहा, देखना मुझे कुछ लिखा नहीं. अभी डेटा वेब टेक्नोलॉजी का एक और एग्जांपल होता है ना, ऐसे बहुत बार होता है. जब यू एक फ्रेंड को तुम्हें जानते हो, दूर का है और तुमने उसके प्रोफाइल पे क्लिक किया फेसबुक पे, तो तुम लोग को एक चीज दिखता है, वो दिखता है म्यूचुअल फ्रेंड्स करके. व्हाट हैपेंस ऑनलाइन में, दिस इज योर प्रोफाइल. तुम लोग ने एक जगह खाना खाया तो उसका योर टैग्ड विद दैट प्लेस, तुमने चेक इन किया वहां पे कि आई वेंट टू द रेस्टोरेंट एंड ईट समथिंग. तुमने एक फ्रेंड का फोटो निकाला, फ्रेंड को तुमने टैग किया, तो तू और तेरा एक फ्रेंड यहाँ पे एक गया खाने के लिए, तो दैट इज अगेन कनेक्टेड टू योर प्रोफाइल.
You did something else also that is connected to Pro. You do something else that is connected to Pro. You do something else that is connected to Profile. ऐसे तुम्हें का वेब बनता जाता है ऑनलाइन. So every day your web is increasing. The more you are online, the more your web gets created. अभी सपोज अगर मैंने एक फ्रेंड्स लेके, मेरे कॉलेज का पूरा ग्रुप है, एक फ्रेंड्स लेके एक फ्रेंड लिया, कॉलेज के एक बंदे को मैंने फेसबुक पे देखा कि अरे ये मैं जानता हूँ यार, इसको मैं ऐड करता हूँ, तो सडनली मुझे दिखेगा अरे मैं उसको ऐड क्यों करूं, बिकॉज उसको दिखेगा कि ये जो बंदा है ना उसके वेब में दिस गाइस कनेक्टेड, दिस गाइस कनेक्टेड, दिस गाइस कनेक्टेड, दिस गाइस कनेक्टेड. दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस एज 4 म्यूचुअल फ्रेंड्स करके, बिकॉज इन योर डेटा वेब एंड ऑन हिज डेटा वेब देयर इज अ कॉमन 4 लोग. दैट इज व्हाट इज एनेबल्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. वेब 3.0 एक बार देखे थे क्या क्या है. फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट इज रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वेब. सेकंड क्या है, सिमेंटिक वेब. सिमेंटिक मतलब सब कुछ एक साथ जगह, जैसे मैंने वो मेकमैटर का एग्जांपल दिया, सब कुछ एक साथ जगह तो प्रोवाइड करने का कैपेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक वेब. दैट वाज नॉट देयर इन वेब 1.0 एंड 2.0. थर्ड एक तरह क्या है, यूजर इंटरेक्शन इज मच हायर, इट इज सुपर. फोर्थ क्या है, एक तरफ वेब 1.0 एंड 2.0 है ना, वो ऑलवेज कन्फाइंड था विद इन द वॉल्स ऑफ द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं रहेगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट वेब 1.0 2.0 अगर इफ आई डोंट हैव द लैपटॉप. बट वेब 3.0 है ना, वो बोलते कंप्यूटर का तेल लेने लगे, कंप्यूटर नहीं चाहिए मेरे को. वी विल इनकलकेट इंटरनेट ऑन ऑल अदर डिवाइसेस. जैसा आपने देखा था बुक के अंदर तेरे को रेटिंग दिखता है. यू गो टू सुपरमार्केट, यू सी योर प्रोडक्ट, वेदर यू कैन शुड बाय द प्रोडक्ट और नॉट, दैट इज इनकलकेटेड इन दैट पर्टिकुलर आइटम. कहने का मतलब क्या है, वेब 1.2, वेब 1.0 एंड 2.0 सीमित था विद इन द फिजिकल वॉल्स ऑफ द कंप्यूटर. बट वेब 3.0 सोचता है कंप्यूटर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आई वांट टू कनेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट. ये क्या लेगा, physical walls of computer were the boundaries in Web 1.0 and Web 2.0. However, Web 3.0 encourages more and more devices to be connected to the web. ठीक है, नेक्स्ट लिखा एग्जाम्पल दिया एक, कंटेंट मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेब 3.0. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सिंपल है, टू एनेबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू थिंक लाइक ह्यूमंस. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. रोबोटिक्स कम्स इन दिस एरिया. अब रजनीकांत ने देखा कि नहीं, अपन तो साउथ इंडियन, अपने को रजनीकांत तो बहुत पसंद है. रजनीकांत को देखा कि नहीं रिपोर्ट करके, हाँ वही है सेम. रजनीकांत का रोबोट है ना, वो उसका नाम क्या रहता है, चिट्टी. चिट्टी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट. A non-living thing that thinks like human, that is called artificial intelligence. Clear? So content management और artificial intelligence को मिलाने का काम, that was a web 3.0 का application. Next, researchers in the field of artificial intelligence are also included in this aspect. तो artificial intelligence में कुछ भी अपन आगे break through करते हैं, it will come under web 3.0 only. Next, ये मैंने जो बोला था वो where we are all connected web बनता अपना एक, देख क्या लिखा, data web technology is used in web 3.0 which features data that are publishable and reusable through query-able